مسلسل 1 گھنٹے سے وہ دیان شاہ کے سامنے بیڈ پر بیٹھی بے آواز روئے جا رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آرمی کی گاڑی اسے گھر اتار کر گئی تھی۔ حالت تو اس کی خطرے سے باہر تھی، لیکن پورا جسم پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ ان شال سے اس کی یہ حالت برداشت نہیں ہو رہی تھی، اس لیے مسلسل روئی جا رہی تھی، اور دیان شاہ بہت محبت سے اسے دیکھ دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ آنسوں سے بھیگا چہرہ، آنکھوں کی سرخ ڈورے جو کئی رت جگہوں کے گواہ تھے، تکلیف سے زرد پڑتا چہرہ، وہ تو چند دن میں ہی کمزور ہو گئی تھی۔ یہ فکریں دیان شاہ کے لیے تھیں جب ہی وہ مسکرا رہا تھا۔ انشال، مجھے لگتا ہے تم میری جان لے کر چھوڑو گی، اس کی خوبصورت بھیگی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نقاہت سے بولا۔ دھیان، وہ چلائی۔ آگے ہی وہ تکلیف میں تھی، وہ اسے اور اذیت دے رہا تھا۔ جس رفتار سے تم آنسو بہا رہی ہو نا، اس سے مجھے یہی لگتا ہے۔ وہ بولا تو انشال کو بھی احساس ہوا کہ اس طرح وہ اور اسے تکلیف دے رہی ہے، اس لیے فوراً آنسو صاف کیے۔ بہت شوق تھا نا آپ کو جانے کا، دیکھ لیا انجام، اسی لیے منع کر رہی تھی آپ کو، اگر کچھ ہو جاتا تو۔ اور میں نے تم سے کہا تھا نا، تمہاری دوائیں تمہاری دعائیں مجھے کچھ نہیں ہونے دیں گی، دیکھ لو، زندہ سلامت تمہارے ساتھ ہوں۔ اور یہ زخم، یہ کچھ بھی نہیں۔ انشال نے پٹیوں میں جکڑے وجود کی جانب اشارہ کیا۔ یہ زخم اس لیے ہے کہ ان زخموں پر تمہیں مرہم رکھنا ہے۔ دھیان مان سے بولا تو وہ ان آنکھوں کی تپش برداشت نہ کر سکی، جن میں محبت، یقین، مان، سب کچھ تھا۔ اچھا، آپ زیادہ بولے نہیں، ڈاکٹر نے منع کیا ہے بولنے سے، یہ دوائیں کھائیں اور آرام کریں۔ انشال نے اسے سہارے سے اٹھا کر منہ میں دوا رکھی اور گلاس لبوں سے لگا دیا، جسے پی کر وہ پھر سے لیٹ گیا۔ انشال کمبل اچھی طرح اس پر ڈال کر باہر آ گئی۔ 7 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی۔ ایمان کو اپنے قریب کھیلتا دیکھ کر بے اختیار اس کی جانب بڑھا۔ جب بائیں بازو پر شدید دباؤ پڑا، تکلیف کے احساس سے سر پھر سے گرا دیا۔ انشال جو دروازے کے بیچ کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، بھاگتی ہوئی اس تک آئی۔ یار، کتنا مجبور ہوں، اپنی بیٹی کو پیار بھی نہیں کر سکتا۔ دھیان نے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ سفیدی میں جکڑے دونوں بازو نہ ہلا سکتا تھا، نہ ہی اس سے کوئی کام لے سکتا تھا۔ کیوں مجبور ہیں؟ میں کس لیے ہوں؟ انشال نے مسکراتے ہوئے ایمان کو اٹھایا اور اس کے سینے پر لٹا دیا۔ وہ بے اختیار اسے پیار کرنے لگا، پھر تشکر آمیز نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، جب ٹھیک ہوں گے تو جی بھر کر پیار کر لیجیے گا۔ اب جلدی سے اٹھیں، میں منہ ہاتھ دھلواؤں آپ کا، پھر یہ سوپ بھی پینا ہے۔ ایمان کو بیڈ پر بٹھا کر اسے سہارے سے اٹھاتے ہوئے وہیں منہ دھلوایا، چہرہ اچھی طرح سے خشک کرنے کے بعد چمچے سے سوپ پلانے لگی۔ جب سائڈ ٹیبل پر بڑے دھیان شاہ کے موبائل پر بیل بجی، انشال نے نمبر دیکھا، فون آغا جان کا تھا۔ آغا جان کا فون ہے، اس نے بتایا۔ ٹھیک ہے، تم یس کرو اور ان کو کچھ بھی مت بتانا، ایسے ہی پریشان ہوں گے۔ دیان نے کچھ بھی بتانے سے منع کیا۔ السلام علیکم آغا جان۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو بیٹا، اور دیان کیسا ہے؟ آغا جان نے اکٹھے دونوں کی خیریت پوچھی۔ نہ جانے کیوں دل رک رہا تھا، کچھ ہوا ضرور ہے۔ ٹھیک ہوں آغا جان، اور دیان بھی ٹھیک ہے، انشال نے جواب دیا۔ دیان ٹھیک ہے نا انشال؟ پتہ نہیں کیوں تسلی نہیں ہو رہی تھی، اسی لیے پھر پوچھا۔ ٹھیک ہے آغا جان، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ان کے لہجے میں واضح پریشانی تھی جو انشال نے محسوس کی۔ پتہ نہیں کیوں وہ دوسری بار دیان کا پوچھ رہے تھے، کہیں انہیں پتہ تو نہیں چل گیا۔ اس کا دل دھڑکا۔ اچھا ٹھیک ہے، کہاں ہے وہ؟ بات کرواؤ میری اس سے۔ وہ ہر صورت تسلی چاہ رہے تھے، دیان کے اشارے پر اس نے فون اس کے کان سے لگا دیا۔ جی آغا جان، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آغا جان، کچھ نہیں ہوا مجھے۔ دیان شاہ کی بھرپور آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی تو کچھ تسلی ہوئی انہیں۔ وہ بیٹا، تمہاری ماں نے کوئی الٹا سیدھا خواب دیکھ لیا کہ تم سخت زخمی ہو، کافی چوٹیں آئی ہیں تمہیں۔ بس اس وقت اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی پریشان کر دیا، اسی لیے تمہاری خیریت پوچھ رہا ہوں۔ آغا جان نے بتایا تو وہ شوق میں آ گیا۔ مائیں کیسے جان لیتی ہیں سب؟ وہ بے طرح حیران ہوا۔ کچھ بھی نہیں ہوا آغا جان، میں بالکل ٹھیک ہوں۔
آپ اپنی سنائیں، سب خیریت ہے نا؟ اس نے بات ہی بدل دی اور کہ وہ کچھ اور ہی نہ پوچھ لیں۔ پورے 1 ہفتے کے بعد آج اس کی دونوں ٹانگوں اور بائیں بازو کا پلسٹر کھلا تو وہ خوش تھا کہ بغیر سہارے وہ چل پھر سکے گا، کیونکہ انشال کے سہارے کے بغیر نہ وہ اٹھ سکتا تھا نہ ہی بیٹھ سکتا تھا، یہاں تک کہ واش روم تک جانا دوبھر ہو جاتا تھا۔ پھر اس کے لیٹے لیٹے بھی وہ کافی اکتا گیا تھا۔ عجیب بوریت اور اکتاہٹ سوار تھی ان دنوں۔ دائیں بازو پر چونکہ کافی چوٹیں آئی تھیں، اس لیے وہ زخم مندمل ہونے میں ابھی کافی ٹائم تھا۔ دھیان پلسٹر اتر گیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دھمالے ڈالنا شروع کر دیں۔ انشال نے اسے پورے گھر میں خوشی سے گھومتے دیکھ کر ڈانٹا۔ آج تو واقعی میرا دھمالے ڈالنے کو جی چاہ رہا ہے۔ پورے 1 ہفتے جس طرح اذیت میں گزارے ہیں وہ میں ہی جانتا ہوں۔ میری وجہ سے تمہیں بھی تکلیف اٹھانا پڑی۔ وہ واقعی بے حد خوش تھا۔ آپ نے بھی تو میرے زخموں پر مرہم رکھا تھا دھیان۔ اب میرا اتنا بھی حق نہیں آپ پر۔ وہ ناراضی سے پلٹنے لگی جب دھیان شاہ نے بازو سے پکڑ کر اسے خود سے قریب کر لیا۔ اس پورے کے پورے دھیان شاہ پر تمہارا حق ہے، سمجھی؟ اور یہ حق دھیان شاہ تمہیں سونپ چکا ہے۔ آئندہ ایسی بات نہیں کرنا۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شوخی سے جھکا تو وہ فوراً پیچھے ہٹی۔ آپ بھی آئندہ ایسی کوئی بات نہیں کریں گے، جو میں کہوں گی صرف وہی کریں گے۔ آرام سے بیٹھ پر لحاف میں جائیے اور مجھے کام کرنے دیں۔ ابھی اتنا کچھ بنانا ہے مجھے آپ کے لیے اور آپ کی اس لاڈلی کے لیے۔ انشال اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولی۔ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگانے کے بعد دھیان نے کمبل خود پر پھیلایا۔ ایمان کیا کر رہی ہے؟ دھیان نے اسے جاتے دیکھا تو پوچھا۔ کھیل رہی ہے لاؤنج میں، اس نے اسے بتایا۔ ایسا کرو یہیں لے آؤ اسے، وہ بولا تو اس نے غصے سے اسے گھورا۔ دھیان تنگ کرے گی وہ آپ کو؟ نہیں تنگ کرتی، تم بس لے آؤ۔ تنگ کیا تو مجھے مت کہیے گا۔ ایمان کو اس کی گود میں بٹھاتے ہوئے اور بونڈ کریا اور کمبل پھر سے دونوں کے گرد لپیٹ دیا۔ دھیان کے ساتھ ساتھ ایمان بھی اب کمبل میں آ چکی تھی۔ اس نے اپنا بایاں بازو ہاتھ سے اس کے گرد پھیلاتے ہوئے پیار کیا۔ دھیان کی گود میں آتے ہی وہ کھلکھلانے لگی۔ آدھا گھنٹہ بھی نہ گزرا جب اسے اپنی شرٹ پر گیلا پن محسوس ہوا۔ پہلے وہ کچھ نہ سمجھ پایا، جب سمجھ آئی تو غصے سے ایمان کو گھورا۔ گندا بچہ، یہ کیا ہے؟ پھر انشال کو پکارنے لگا۔ پہلی آواز پر وہ کمرے میں داخل ہوئی، لیکن اندر کی صورتحال دیکھ کر بے ساختہ ہنسی چھوٹ گئی۔ ہنسنے کا موقع نہیں ہے، پلیز میرے حال پر رحم کرو، وہ بے چارگی سے بولا، کیونکہ ایمان اس کی گود میں مچلی جا رہی تھی۔ منع کیا تھا نا آپ کو، تنگ کرے گی، بات نہیں مانی نا میری، مزہ تو لے لیا ہوگا ایمان کو گود میں بٹھانے کا۔ ایمان کو اس کی گود سے اٹھاتے ہوئے نیچے کارپیٹ پر لٹایا اور اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بری طرح سے لتاڑا۔ معاف کر دو میری اچھی بیوی، آئندہ تمہاری کسی بات سے انکار نہیں کروں گا، لیکن ابھی مجھے اس سے نجات دلاؤ۔ اس نے شرٹ کی جانب اشارہ کیا جو بری طرح گیلی ہو چکی تھی اور دھیان کے لیے کوفت کا باعث بھی۔ دل تو یہی چاہ رہا ہے کہ ایسے ہی چھوڑ دوں آپ کو، شرٹ کے بٹن آہستہ آہستہ کھولتے ہوئے مصنوعی غصے سے بولی۔ ایسے ہی چھوڑ دو گی تو جاؤ گی کہاں؟ مجھے ایک بار ٹھیک ہو لینے دو، پھر دیکھنا گن گن کے بدلے لوں گا دونوں سے۔ دھیان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وارن کیا تو وہ مسکرا دی۔ فی الحال آپ میری کسٹڈی میں ہیں، اس لیے چپ چاپ خاموشی سے بیٹھے رہیں۔ اف میرے خدا، یہ بھی گیلی ہو گئی۔ دھیان شاہ کا وجود شرٹ کی قید سے آزاد کرواتے ہوئے نظر بنیان پر پڑی تو وہ بھی گیلی ہو چکی تھی۔ اسے بھی احتیاط سے اتارا جب بالکل اچانک اس کا گرم ہاتھ دھیان شاہ کے ٹھنڈے ٹھاٹ جسم سے ٹکرا گیا۔ لمحوں میں ہلچل مچی تھی، دھڑکنوں میں بھی۔ انشال نے فوراً ہاتھ کھینچا، لیکن دھیان شاہ پہلے ہی اپنا یک ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ چکا تھا۔ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا، محبت پاش نظریں سنسناہٹ پیدا کر رہی تھیں۔ وجود میں، دل کی دھڑکنوں میں عجیب سا ارتعاش پیدا ہو گیا۔ اس نے گھبرا کر پھر مزاحمت کی، لیکن گرفت مضبوط تھی اور دھیان نے موقع ضائع کیے بغیر ہاتھ کھینچتے ہوئے خود پر گرا لیا۔ وہ سیدھی اس کے چوڑے سینے سے لگی، اپنا بازو اس کے گرد پھیلائے ہوئے بھرپور حصار قائم کیا اور اس پر جھکتا گیا۔ اتنا دور دور رہو گی تو کیسے چلے گا سب؟ اس کے چہرے پر پیار کی مہر ضبط کرتے ہوئے گمبھیر لہجے میں وہ بولا تو انشال نے اس کے سینے پر دھرے اپنے دونوں ہاتھوں کا زور ڈالتے ہوئے اسے پیچھے دھکیلا اور اپنی بے ترتیب سانسوں کو سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب سزا یہ ہے آپ کی کہ آپ کو شرٹ نہیں ملے گی،
रहें ऐसे ही। वो उसे बुरी तरह से घूरते हुए बाहर निकल गई और वो वहीं सर थाम कर बैठ गया। क्या बनेगा ध्यानशा तुम्हारा? मुसलसल 1 हफ्ते से उसे अजीबो-गरीब ख्वाब आ रहे थे। कभी मम्मा को बेतनहा रोते हुए देखती, कभी बेहद परेशान। बार-बार वो उसे ही पुकार रही होती। अब तो मुसलसल 3 दिनों से वो उन्हें सख्त बीमार देख रही थी। तब भी उनके लबों से उसी का नाम निकल रहा होता। कभी-कभी तो वो नींद में उठकर बैठ जाती। लंबे-लंबे साँस भरने लगी। ध्यानशा भी उसकी बदलती कैफियत नोट कर रहा था। कई बार पूछा भी, लेकिन वो टाल गई। जानती थी शाह हाउस वालों के लिए ध्यानशा का गुस्सा, इसीलिए डरती थी। लेकिन उस दिन आगा जान के फ़ोन ने उसके ख्वाबों की तस्दीक कर दी। क्या कह रहे हैं आगा जी? क्या हुआ है मम्मा को? आगा जान ने उसे सामिया की खराबी तबीयत का बताया तो वो रो दी। पास बैठा ध्यानशाह चौंका। इंशाल बेटा, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक हो जाएगा सब। तुम परेशान ना हो। आगा जान उसे बताकर पछताए। तसल्ली भी दी, लेकिन वो रोए जा रही थी। ध्यान ने फोन हाथ से खींचकर बंद कर दिया। तुमसे मैंने कहा था, शाह हाउस वालों के लिए तुम एक आंसू नहीं बहाओगी। वो धाड़ा। ध्यान वो, मम्मा, भूल जाओ सबको। शाह हाउस से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, समझ आई? लेकिन वो कैसे भूल जाती? मानती थी कि ध्यान शाह की मोहब्बत ने उसे भूलने पर मजबूर कर दिया, लेकिन शाह हाउस वालों को दिल से भुला नहीं पाई थी। आज आगा जान के फोन पर वो फिर से तड़प उठी, जब उन्होंने सामिया की बीमारी का तस्करा किया कि उनकी याद में वो अंदर ही अंदर तड़प रही, तो वो खुद पर से इख्तियार खो बैठी। शाह हाउस वालों से मिलने की ख्वाहिश शिद्दत इख्तियार कर गई, लेकिन ध्यान शाह की बेहिसी से अंदर ही अंदर हार गई। वो उससे शिकवा भी नहीं कर सकती थी कि उसकी मोहब्बत के बोझ तले दबी हुई थी। उसने लब सी लिए, लेकिन अंदर ही अंदर मरने लगी। सामिया की तबीयत काफी दिनों से सख्त खराब थी। बेटी की जुदाई में वो अंदर ही अंदर टूट रही थी, घुट घुट कर मर रही थी, लेकिन जुबान पर लगा कफल ना तोड़ा। उन्होंने एहसान शाह, फायका, तस्कीन, गजल हाजिक और मिना और रमना सभी उस वक्त कमरे में उनकी तीमारदारी को मौजूद थे। हसान भाई, क्या कह रहे हैं डॉक्टर? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? हसान शाह के कमरे में दाखिल होते ही तस्कीन ने तशवीश भरे अंदाज में पूछा। डॉक्टर्स कह रहे हैं टेंशन है, कुछ अरसे किसी पुरसुकून जगह ले जाया जाए तो बेहतर है, वरना तबीयत ज्यादा खराब हो सकती है। हसान शाह ने बताया तो आगा जान और गजल एक दूसरे को देखकर हौले से मुस्कुराए। क्या ख्याल है, फिर चले ना किसी पुरफिजा मुकाम पर? सामिया चाची की तबीयत भी बहल जाएगी और आउटिंग भी हो जाएगी। गजल ने सबके मुरझाए चेहरों पर बारी बारी नजर डालते हुए खुश दिली से पूछा। यहाँ जान के लाले पड़े हैं और तुम्हें आउटिंग की सूझ रही है? फायका बेगम ने उसे बुरी तरह डांटा। डांट कर आगे ही उन तीनों की कोई खैर खबर नहीं थी, जिसकी वजह से सामिया इस हाल को पहुंची और उसे सैर सपाटों की पड़ी थी। मामा, डॉक्टर से खुद कहा है, सामिया चाची के लिए चेंज बेहद जरूरी है, बल्कि मेरे ख्याल से हम सबके लिए बेहद जरूरी है। क्यों आगा जान? उनकी डांट को बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए आगा जान से पूछा। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से सवात के अलावा कोई और बेहतरीन जगह नहीं आउटिंग के लिए। इतने पुरफिजा मुकाम पर जाकर सभी फ्रेश हो जाएंगे और सामिया की तबीयत भी बहल जाएगी। मजीद वो उन्हें कुछ कहना नहीं जानते। वैसे भी ये सुबह के भूले शाम को घर में लौटे थे। ध्यान ध्यान इंशाल और ईमान से दूरी अब उन्हें भी बर्दाश्त नहीं थी। वैसे भी बहुत दौरा लिया था। वैसे भी बहुत दूर रह लिया था सबने। एहसास तो हो गया था उन्हें, इसलिए वो सबको और तकलीफ में नहीं देख सकते थे। नहीं भाई साहब, मैं ठीक हूँ यहाँ। क्या करूंगी सवात जाकर? सामिया बेड पर लेटी नकाहत से बोली। उनकी परेशानी तो उनके बच्चे थे, वो ही पास नहीं तो फिर यहाँ रहें या कहीं और, क्या फर्क पड़ता? मैं कुछ नहीं सुनूंगा। हाजिक बेटा, तुम सबकी टिकटें कंफर्म कराओ, हम कल ही सवात जाएंगे। आगा जान अपने दामाद को हुक्म देते हुए बाहर निकल गए। इंशाल अपनी ही सोचों में मगन ध्यान की शर्ट इस्त्री करने में मसरूफ थी जब उसने पुकारा। जी। उसने वहीं से गर्दन घुमाई। ध्यान की हालत जार देखकर हंसी छूटते छूटते रह गई। ब्लैक पैंट पर ग्रे हाई नेक के साथ दोनों बाजू बगलों में दबाए,
साथ ही हथेलियां रगड़कर फिर मुट्ठियां गर्म करते हुए गोया सर्दी की शिद्दत को कम करने की अपनी सी कोशिश की जा रही थी। दांत अलग सर्दी से बज रहे थे। करीब पड़ा लिहाफ अपनी इस कदर तजलील और नाकदरी पर उठ उठ आठ आठ आंसू बहा रहा था, जिसे ओढ़ना था वो दूर की बात, छूने तक की जहमत गवारा नहीं की थी ध्यान ने। यार, जल्दी करो, मर रहा हूं मैं सर्दी से। इन शाल के गिर्द लिपटी कामदार ब्राउन शॉल में दोनों हाथ सर्दी से महफूज करते हुए वो इंतहाई बेचारगी से बोला, बस 5 मिनट, आप लिहाफ ले लेना, ऐसे सर्दी थोड़ी कम होगी। शर्ट पर मुसलसल तेजी से इस्त्री फेरते हुए ध्यान को गुस्से से घूरा, जो बदस्तूर पहली पोजीशन में था। तुम ऐसा करो, ये सब छोड़ो और फातिहा पढ़ लो मेरी, क्योंकि जिस तरह से तुम इस्त्री कर रही हो ना, इसमें मेरा मरना यकीनी है। स्विच बोर्ड पर नजर डाल लीजिए, ऑफ है। ध्यान ने तंजिया अंदाज में उसे गलती का एहसास दिलाया, तो अपनी बेवकूफ़ी और कम अक्ली पर उसे बेतहाशा गुस्सा आया। मुसलसल 1 घंटे से सोचों के गर्दाब में घिरी बेध्यानी में स्विच ऑन किए बगैर शर्ट प्रेस करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। एक बार भी ख्याल जहन से नहीं गुजरा कि 1 घंटे में एक क्या, वो ऐसी कई शर्ट प्रेस कर सकती थी। फिर इसे करने में इतनी देर क्यों? आई एम सॉरी, ध्यान ही नहीं रहा। मैं बस 2 मिनट में कर देती हूँ। उसने जल्दी जल्दी प्लग बोर्ड में लगाया और एक बार फिर इस्त्री करने लगी। ध्यान आयरन स्टैंड से टेक लगाए, उसकी बेसाख्तगी पर धीरे से मुस्कुराया। वैसे एक बात तो बताओ, तुम्हारा ध्यान था किधर, जो इस कदर फूहड़पन का सबूत दिया है? कहीं ध्यान में तो ध्यान नहीं था? उसकी आंखों में झांकता वो शरारत से बोला, मगर उस पल, इन शाल के पल भर में बदलते तासरात ने जिस तरह उसके अंदरूनी कर्ब को आश्कार किया, ध्यान शाह से कुछ भी पोशीदा ना रह सका। चेहरे पर फैली आजर्दगी, आंखों की वहशत, अंदरूनी इस्तराब, उसने तो शायद उसकी बात भी पूरी तरह से ना सुनी थी। सपाट चेहरे के साथ पलक निकाला और शर्ट उसकी जानिब बढ़ा दी। ध्यान ने शर्ट थामते हुए एक दुख भरी निगाह उस पर डाली, जो नाहक अपने साथ साथ उसकी जान पर भी जुल्म कर रही थी। खुद तो तकलीफ में थी ही, साथ में उसकी परेशानी और इस्तराफ में इजाफा किए जा रही थी। आगा जान के फोन के बाद जिस तरह वो अजियत में दिन काट रही थी, ध्यान बेखबर नहीं था। सामिया चाची की खराबी तबीयत का सुनकर वो खुद भी बेहद परेशान था, लेकिन इंशाल जिस तरह अंदर ही अंदर घुटकर अपना अंदरूनी इस्तराब और वहशत बढ़ा रही थी, वो ध्यान शाह की बर्दाश्त से बाहर था। वो तो शायद अभी खुद को जिम्मेदार ठहरा रही थी, जो गुनाह उससे सरजद हुआ ही नहीं, उसकी सजा झेले जा रही थी। जब उसका दिल बिल्कुल साफ था, उसने उसे हर इल्ज़ाम से बरी ज़िम्मे कर दिया था। तमाम गलतफ़हमियाँ, शकू को शुबहात ज़हन से निकाल बाहर फेंके थे। उसकी सारी सज़ाएँ माफ़ करके उसे मान बख्शा था। तो फिर वो क्यों सब कुछ भुला नहीं पा रही थी? क्यों उन सब की याद में अंदर ही अंदर घुट रही थी? जो उसकी परवाह तो ख़ैर क्या करते, उसकी शक्ल तक देखने के रवादार नहीं थे। कैसे पल भर में उसे एतबार की सीढ़ी से नीचे गिरा दिया, बरसों का साथ 1 सेकंड में तोड़ दिया। लम्हा भी ना लगा उन्हें अजनबी बनने में। जब उन्हें परवाह नहीं तो वो क्यों उनके लिए अपनी जान खत्म कर रही थी? ध्यान का गुस्सा अब सवा नेजे पर पहुंचने लगा। एक हाथ में शर्ट थामते हुए मुड़ती इंशाल का हाथ तेजी से अपनी जानिब खींचा। कुछ पल उन आंखों को देखता रहा, जो आंसू छलकाने को बेताब थीं। इंशाल, क्यों जुल्म कर रही हो खुद पर? क्यों दे रही हो तकलीफ खुद को, उनके लिए जिन्हें तुम्हारी इतनी सी भी परवाह नहीं? मैंने तुम्हें पहले दिन ही कहा था, तुम्हारी आंख से एक आंसू भी निकला ना तो अच्छा नहीं होगा। तुम भूल क्यों नहीं जाती सब? कैसे भूल जाऊं सबको? नहीं भूल सकती। गुजरे पल का एक एक लम्हा, एक एक याद नाक की तरह मुझे अंदर ही अंदर डस रहे हैं, मुझे गहन जदा कर रहे हैं। मेरे वजूद का एक एक हिस्सा उनकी याद में तड़प रहा है। मैं कैसे भूलूं ध्यान, इन 20 सालों की रफ़ाकत को, ममा की मोहब्बत और प्यार भरी डाँटों को, पापा के लाड को, ताई जान की मोहब्बत और आगा जान की शफ़क़त को। कैसे भूलूँ ध्यान, मैं कैसे भूल जाऊँ? मेरी वजह से आज ममा इस हाल को पहुँच गई हैं। कैसी बदनसीब हूँ ना मैं, किसी को
कोई खुशी भी ना दे सकी। आप कहते हैं मैं भूल जाऊँ। सब कैसे भूल जाऊँ ध्यान, कैसे भूल जाऊँ? वो उसके बाजुओं में झूल गई। लाहौर के वसीओ अरीज पैलेस, शाह हाउस में एहसान शाह अपनी बीवी फाइका बेगम और 2 बच्चों गजल और ध्यान शाह के साथ, पलाई मंजिल पर और हस्सान शाह, बीवी सामिया और बेटी मिनाल के साथ शाह हाउस की जीरी मंजिल पर रहते थे। एहसान शाह और हस्सान शाह की एक बहन तस्कीन अपने शौहर रजा अहमद और 2 बच्चों हाजिक और रमना के साथ डिफेंस के अहमदिया हाउस में रिहाइश पजीर थी। एहसान शाह और हस्सान शाह का मुश्तरका कारोबार था, जिन्हें दोनों भाई बखूबी एहसन चला रहे थे। शाह हाउस में गजल बच्चों में सबसे बड़ी थी, जिसे सब गजल आपी कहते थे। ध्यान शाह और मनाल तकरीबन हम उम्र थे, दोनों में 1 साल का फर्क था। इन्हीं दिनों जब गजल 17, ध्यान 10 और मिनाल 9 साल की थी, शाह हाउस में एक नई हस्ती, नए वजूद का इजाफा हुआ। बकौल ध्यान शाह, उसे वो दिन आज भी अच्छी तरह से याद था, जब वो सुबह सोकर उठा तो शाह हाउस में खिलाफ तवक्को हर तरफ खामोशी और सकूत छाया था। पूरे घर की तलाशी के बाद वो किचन में दाखिल हुआ तो रजिया को सिंक में बर्तन धोते देखकर सुख का सांस खारिज किया। चलो, कोई तो था घर में। रजिया ने उसे किचन में दाखिल होते देखकर बर्तन वहीं छोड़े और उसकी तरफ आई। ध्यान बेटा, उठ गए? आप बैठो, मैं नाश्ता लाती हूँ। उसे नाश्ते की टेबल पर बैठने का कहकर वो खुद नाश्ता बनाने लगी। ना जाने क्यों उसके चेहरे पर अजीब मुस्कुराहट थी, जिसे वो समझ नहीं पाया। रजिया, ध्यान ने पुकारा। आप यही पूछना चाह रहे हैं ना छोटे शाहजी? वो अक्सर उसे इसी नाम से पुकारती। सब लोग कहाँ हैं और घर में इतनी खामोशी क्यों है? मैं आपको बताती हूँ, लेकिन पहले आप नाश्ता करें। उसके बाद जैम लगी डबरोटी उसकी तरफ बढ़ाते हुए वो मायने खेज मुस्कुराहट होठों पर सजाते हुए बोली। तो मजबूरन उसे पहले नाश्ता करना पड़ा। इससे पहले कि उसके चेहरे पर फैली दबी दबी मुस्कुराहट उसे किसी बड़ी खबर का पेश खैमा लगी। वो खबर यकीनन खुशी की थी। वो जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म करके फिर अपने मकसद की जानिब आया। चलो रजिया, अब बताओ। देखो, मैंने सारा नाश्ता खत्म कर लिया है। उसने यकीन दहानी के लिए टेबल की जानिब इशारा करते हुए बताया। पहले तो वो खूब खिलखिला कर हंसी, फिर उसके बिल्कुल सामने वाली चेयर पर बैठते हुए बोली, आपके लिए खुशी की खबर है छोटे शाहजी। मिनाल बीबी की बहन हुई है आज सुबह। सब अस्पताल उसे ही देखने गए हैं। थोड़ी देर पहले आगा जान का फोन आया था। 2-4 घंटों तक बेबी समेत घर पहुंच जाएंगे। वो अपनी ही रो में बोले जा रही थी और उस वक्त ध्यान शाह का जी चाहा खुशी से भंगड़ा डाले। मिनाल की बहन यानी ध्यान शाह की छोटी सी नन्ही मुन्नी सी कजन अचानक मिलने वाली इस गैर मुतवक्के खुशी की खबर से उसे चारों जानिब अजीब सी सरशारी ने आन घेरा। गजल आपी उससे पूरे 7 साल बड़ी थी और अपने बड़े होने का भरपूर फायदा उठाती। ये करो, वो ना करो, ये खाओ, वो ना खाओ, टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, काम के वक्त काम और खेल के वक्त खेल। उनके साथ तो दोस्ती का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता था। रही मिनाल तो वो उससे 1 साल ही छोटी थी और इस फर्क को दोनों ही किसी खाते में नहीं रखते थे। जितनी दोस्ती थी, उससे कहीं ज्यादा झगड़ा, हर बात पर बहस, हर चीज पर लड़ाई, हर चीज में मुकाबलेबाजी रहती। उनकी रोब डालना तो दूर की बात, वो तो डांटने तक की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। इसलिए अपनी उस नन्ही कज़न के आने पर बेइंतहा खुश था। और खुश क्यों ना होता? आखिर को साद हमज़ा की अकड़ और गुरूर भी तो पाश-पाश करना था, जो हर वक्त क्लास में अपनी बहन दोनिया की शो मारता फिरता, जो सिर्फ 3 माह की थी। पूरी क्लास को लिए ब्रेक टाइम में वो होता और उसकी दोनिया कोई भी नई बात जो दुनिया से मुताल्लिक होती। बड़ी-बड़ी आँखों वाली सुर्ख सफ़ेद बच्ची थी। अक्सर औक़ात उसे देखकर ध्यान के दिल में भी शदीद ख़्वाहिश अंगड़ाई लेती कि काश शाह हाउस में भी कोई ऐसी ही गोल-मटोल प्यारी-सी खूबसूरत आँखों वाली छोटी-सी बेबी होती, ताकि साद हमज़ा की तरह उसके पास भी अपने दोस्तों को बताने को ऐसा कुछ हो सकता। शायद खुदा ने उसकी सुन ली, इसीलिए जब इतनी खुशी की खबर कानों में पड़ी तो वो खुद को हवाओं में उड़ता महसूस करने लगा। इससे पहले कि बेयकीनी की कैफियत में घिरा हुआ सोचों का तसलसल मजीद बरकरार रखता, गाड़ी का हॉर्न उसे हकीकत की दुनिया में ले आया। किचन से लाउंज और फिर राहदारी तक का सफर धड़कते दिल और फूलती सांसों समेत तय हुआ, जबकि शौक दीदार
बढ़ता जा रहा था। फाइका बेगम ने आहिस्तगी से उसे सामिया के पहलू में लिटाया। जब ध्यानशाह ने पहली बार उसे देखा, लाइट और डार्क ब्राउन कंबल में उसका नन्हा मुन्ना सा वजूद लिपटा था। आधी खुली बंद आंखों के साथ कसमसाई हुई, शायद अभी नींद की कैफियत में थी। आका जान, मम्मा हसान, चचा मिनाल, गजल आपी सभी बेहद खुश थे। बारी बारी वो सबकी गोद में चढ़ी उनसे प्यार वसूल कर रही थी। ध्यान का भी जी चाहा उसे उठाकर प्यार करे, जिस तरह बाकी सब कर रहे थे। लेकिन कोई भी उसे ऐसा करने की इजाज़त नहीं दे रहा था, क्योंकि उस वक़्त वो सिर्फ़ चंद घंटों की थी और सबको यही खौफ़ था कि कहीं वो उसे गिरा ना दे। उस वक़्त उसने अपनी ख़्वाहिश को दबा लिया, बहरहाल वो बहुत खुश था। उसके मुकाबले में तो साद हमज़ा की दुनिया कुछ भी नहीं थी। फिर जिस वक़्त ध्यान शाह उसे साद हमज़ा को दिखाने को लाया तो उसके चेहरे का रंग जिस तरह बदला, उसने सैरो खून बढ़ा दिया उसका। अब ध्यानशा की बारी थी। क्लास का हर दूसरा बच्चा उससे रोज इंशाल के बारे में कुछ न कुछ पूछ रहा होता और वो साद हमजा की मौजूदगी में उसके दिन भर के रूटीन और शरारतें मजे ले लेकर सुनाता। वो थी भी इतनी क्यूट और शरारती कि शाह हाउस की दुनिया गोया अब उसी के दम से कायम थी। ध्यानशा और मिनाल दोनों की खुशियों का मरकज भी अब यही थी। गोल मटोल सी नन्ही सी इंशाल थी जो उन्हें बेहद अजीज थी। इंशाल की छोटी सी छोटी ख्वाहिश, छोटे से छोटा काम वो दोनों बिला चूं चरा करते, बल्कि इंशाल की वजह से तो हर वक्त सर्द जंग छिड़ी रहती। दोनों के बीच ध्यान शाह, मिनाल और इंशाल हर जगह तकरीबन साथ साथ होते, पढ़ना इकट्ठे, खेलने में साथ साथ, खाने के वक्त भी मिनाल और ध्यान में झगड़े के पेश नजर इंशाल बीच में और वो दोनों साइड में होते, ताकि बराबरी की फिजा कायम रहे। यहाँ तक के दोस्तों के यहाँ भी तीनों इकट्ठे जाते। मिनाल को जब कभी फ्रेंड के यहाँ काम होता या फुप्पो के घर जाने को जी चाह रहा होता, इंशाल जरूर साथ जाने की जिद करती। छोड़ने की ड्यूटी हमेशा ध्यानशाह के सर होती और ड्यूटी हर सूरत निभाना भी यक कालिब तीन जान वाला फिक्रा इन तीनों पर खूब बचता। इन तीनों पर खूब सजता। शुरू-शुरू में मिनाल, ध्यान और गज़ल आपी एक ही कमरा इस्तेमाल करते थे, लेकिन बाद में तीनों अलग-अलग कमरे में सोने लगे। इंशाल चूँकि अंधेरे में बहुत डरती थी, इसलिए उसने अलग सोने से मना किया और इस तरह मिनाल और इंशाल एक ही कमरा इस्तेमाल करने लगे। शायद ही ज़िंदगी में किसी ने उसे मिनाल के अलावा किसी और के साथ सोते देखा। बल्कि एक बार तो गज़ल आपी की शादी पर जब मिनाल बारात के साथ तस्कीन फुप्पो के साथ अहमदिया हाउस गई तो रात में उसकी गैर मौजूदगी में उसने रो रो कर आसमान सर पर उठा लिया। मजबूरन फोन करके उसे वापस बुलाना पड़ा। सभी जानते थे कि मिनाल के साथ उसकी सोने की आदत कितनी पुख्ता हो चुकी है। आदत पुख्ता हो जाए तो ये अपने होने का यकीन जरूर दिलाती है। उस वक्त जब वो 27 बरस का था, मिनाल 26 और इंशाल फकत 16 बरस की ओ लेवल कर रही थी, जब आगा जान ने एक दिन ध्यान को अपने कमरे में तलब किया। आपने बुलाया था आगा जान? एहसान शाह को मैगजीन की वर्क गुर्दानी करते देखकर उसने यकीन दिहानी चाही। उन्होंने सर उठाया, हौले से मुस्कुराए और उसे बैठने का कहकर खुद सीधे हो गए। बेटा, कितनी छुट्टियां बाकी हैं तुम्हारी? उन्होंने पूछा। 3 माह की आगा जान। ध्यान बेटा, अब चूंकि तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है और तुम अच्छी पोस्ट पर हो, इसलिए मेरी और तुम्हारी मम्मा की राय ये है कि इन छुट्टियों में तुम्हारी और मिनाल की शादी कर दी जाए। बहुत ठहरे ठहरे संजीदा लहजे में उन्होंने अपना मुद्दा बयान किया। इतनी जल्दी आगा जान? वो फकत इतना ही बोल सका। पता नहीं क्यों मिनाल के साथ शादी का सुनकर उसे कोई खास खुशी नहीं हुई थी। अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था जिसे वो कोई नाम नहीं दे पाया। हालांकि मिनाल हर लिहाज से एक बेहतरीन लड़की थी। बरसों का साथ था दोनों का। एक दूसरे की आदत से अच्छी तरह से वाकिफ थे। दोस्ती, लड़ाई, यकीन, खुलूस, एतमाद सभी रिश्ते थे दोनों के बीच। फिर भी अंदर एक अनजाना सा सकूत था। क्यों? ये वो खुद भी नहीं जानता था। ध्यान शाह, पूरे 27 के हो गए हो। मेरे ख्याल से तो काफी लेट हो गए हो। फिर मिनाल और तुम में इतना ज्यादा फर्क भी नहीं है। 1 साल ही छोटी है तुमसे और मेरे ख्याल से तुम दोनों के दरमियान अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग भी है। जहां तक मेरा अंदाजा है, तुम उसे पसंद भी करते हो, इसलिए तुम्हें तो कोई एतराज नहीं होगा। मैं ठीक कह रहा हूं ना? बहुत मान से वो पूछ रहे थे। इनकार की गुंजाइश ही कहाँ रखी थी उन्होंने। ऐसा हो भी जाता तब भी वो उनका मान कभी ना तोड़ता, इसलिए उनके फैसले के आगे सर झुका लिया।
इस तरह मिनाल दयान शाह बनकर उसकी ज़िंदगी में आ गई। इन रिश्तों के बीच शक, गलतफहमियों और नफ़रत की दीवार शादी की पहली रात उस वक़्त खड़ी हुई, जब इंशाल हस्सान शाह ने उनकी ज़िंदगी में दस्तक दी। ध्यान शाह को कमरे में आए ज़्यादा वक़्त नहीं गुज़रा था। अभी अपने और मिनाल के दरमियान बनने वाले उस नए बंधन की शुरुआत के बारे में वो सोच ही रहा था, जब यकदम दरवाज़े पर दस्तक हुई। मिनाल और ध्यान दोनों ने बेक वक़्त एक दूसरे की जानिब देखा। हैरानगी दोनों के चेहरे पर सवा थी। ये कौन आ गया? वो मीनाल की तरफ देखते हुए बोला, जो उसे ही देख रही थी। फिर आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला, तो अपने सामने खड़े इंसान को देखकर वो सचमुच को चकरा गया। इंशाल तुम? आलम हैरत में सिर्फ यही बोल सका, इससे पहले कि वो उसके यहाँ आने का मकसद दरियाफ्त करता। इंशाल उसे परे करती अंदर दाखिल हुई। मिनाल आपी, आप यहाँ क्यों आ गई हैं? आपको पता है ना कि मुझे आपके बगैर बिल्कुल नींद नहीं आती। प्लीज़, आप चलें अपने कमरे में। वो मिनाल का बाजू थामे, बिल्कुल बच्चों की तरह ज़िद करते हुए बोली। तो उसके यहाँ आने का मकसद जानकर मिनाल के साथ-साथ वो भी अपनी जगह ठिठक गया। ये सच था कि वो और मिनाल शुरू से एक ही कमरा और बेड इस्तेमाल करती आई थीं। लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि इंशाल आज के दिन इस तरह का रिएक्ट करेगी। मिनाल तो बिल्कुल फटी-फटी आँखों से कभी इंशाल और कभी ध्यान शाह को देख रही थी। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि आज के दिन जब वो जबकि वो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रही थी, उसकी बहन इस तरह उसकी खुशियों का गला घोंटने चली आएगी। इंशाल गुड़िया, अब तो आप बड़े हो गए हो। अब तो आपको अकेले सोने की आदत डाल लेनी चाहिए। मिनाल ने दिल पर जबर करते हुए समझाना चाहा। मिनाल आपी, आपको पता है ना कि मुझे डर लगता है अकेले में, और आपके बगैर मुझे नींद भी नहीं आती है। अपनी आदत से मजबूर वो आंखें मलते हुए बोली। यूं लग रहा था जैसे वो गहरी नींद से जागी हो। अच्छा ठीक है, तुम कमरे में जाकर अच्छे बच्चों की तरह आंखें बंद करो, मैं अभी आती हूँ। उसने लाड से समझाते हुए आखिरी हरबा इस्तेमाल किया, ये जानते हुए भी कि वो जिद की कितनी पक्की है। इसलिए बगैर वो उसे लिए बगैर वो हरगिज नहीं जाएगी। फिर वही हुआ। नहीं आपी, आप जब तक मेरे साथ नहीं चलेंगी मैं नहीं जाऊंगी। प्लीज चले ना, मुझे नींद आ रही है। फिर इंशाल की जिद के आगे उसे हथियार डालना पड़े। ध्यान अलग इस सारी सूरत-ए-हाल पर परेशान खड़ा था। 3 तो पहले हो चुके थे। अज़ानों से कुछ देर पहले वो सपाट चेहरे के साथ कमरे में लौटी। ध्यान उसी के इंतज़ार में सोफ़े की पुश्त से टेक लगाए बैठा था। मिनाल के कमरे में दाखिल होते ही उसकी जानिब बढ़ा। प्लीज़ ध्यान, मैं इस वक़्त कोई बात नहीं करना चाह रही। मिनाल ने हाथ के इशारे से उसे वहीं रोक दिया। ध्यान ने एक नज़र उसके संजीदा अफसरदा चेहरे पर डाली, जो उसका अंदरूनी कर्ब आश्कार कर रहा था। जानता था उस दिन के अरमान लड़की अपनी आँखों में सजाए होती है। अरमान की यूँ किरचियाँ हों तो दिल कैसे टूटता है। अरमानों का खून कैसे होता है, आँखों में लो देते ख्वाहिशों के दिए एक-एक करके कैसे मद्धम पड़ जाते हैं। ध्यान शाह बाखूबी जानता था। देखो मैं मुसलसल 1 घंटे से वो ध्यान शाह के सामने बेड पर बैठी बेआवाज़ रोए जा रही थी। अभी थोड़ी देर पहले आर्मी की गाड़ी उसे घर उतार कर गई थी। हालत तो उसकी खतरे से बाहर थी, लेकिन पूरा जिस्म पट्टियों में जकड़ा हुआ था। इन शाल से उसकी ये हालत बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए मुसलसल रोई जा रही थी। और ध्यान शाह बहुत महवियत से उसे देख देख कर मुस्कुरा रहा था। आंसुओं से भीगा चेहरा, आंखों की सुर्ख डोरे जो कई रत जगों के गवाह थे, तकलीफ से जर्द पड़ता चेहरा, वो तो चंद दिन में ही कमजोर हो गई थी। ये फिक्रें ध्यान शाह के लिए थीं, जब ही वो मुस्कुरा रहा था। इंशाल, मुझे लगता है तुम मेरी जान लेकर छोड़ोगी। उसकी खूबसूरत भीगी आंखों में देखते हुए नकाहत से बोला। ध्यान, वो चिल्लाई। आगे ही वो तकलीफ में थी, वो उसे और अजियत दे रहा था। जिस रफ्तार से तुम आंसू बहा रही हो ना, इससे मुझे यही लगता है। वो बोला तो इंशाल को भी एहसास हुआ कि इस तरह वो और उसे तकलीफ दे रही है, इसलिए फौरन आंसू साफ किए। बहुत शौक था ना आपको जाने का, देख लिया अंजाम, इसीलिए मना कर रही थी आपको। अगर कुछ हो जाता तो? और मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारी दवाएं तुम्हारी दुआएं मुझे कुछ नहीं होने देंगी। देख लो, जिंदा सलामत तुम्हारे साथ हूँ। और ये जख्म
یہ کچھ بھی نہیں۔ انشال نے پٹیوں میں جکڑے وجود کی جانب اشارہ کیا۔ یہ زخم اس لیے ہے کہ ان زخموں پر تمہیں مرہم رکھنا ہے۔ دھیان مان سے بولا تو وہ ان آنکھوں کی تپش برداشت نہ کر سکی جن میں محبت، یقین، مان سب کچھ تھا۔ اچھا، آپ زیادہ بولے نہیں، ڈاکٹر نے منع کیا ہے بولنے سے، یہ دوائیں کھائیں اور آرام کریں۔ انشال نے اسے سہارے سے اٹھا کر منہ میں دوا رکھی اور گلاس لبوں سے لگا دیا، جسے پی کر وہ پھر سے لیٹ گیا۔ انشال کمبل اچھی طرح اس پر ڈال کر باہر آ گئی۔ 7 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی۔ ایمان کو اپنے قریب کھیلتا دیکھ کر بے اختیار اس کی جانب بڑھا۔ جب بائیں بازو پر شدید دباؤ پڑا، تکلیف کے احساس سے سر پھر سے گرا دیا۔ انشال جو دروازے کے بیچ کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، بھاگتی ہوئی اس تک آئی۔ یار، کتنا مجبور ہوں، اپنی بیٹی کو پیار بھی نہیں کر سکتا۔ دھیان نے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ سفیدی میں جکڑے دونوں بازو نہ ہلا سکتا تھا، نہ ہی اس سے کوئی کام لے سکتا تھا۔ کیوں مجبور ہیں؟ میں کس لیے ہوں؟ انشال نے مسکراتے ہوئے ایمان کو اٹھایا اور اس کے سینے پر لٹا دیا۔ وہ بے اختیار اسے پیار کرنے لگا، پھر تشکر آمیز نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، جب ٹھیک ہوں گے تو جی بھر کر پیار کر لیجیے گا۔ اب جلدی سے اٹھیں، میں منہ ہاتھ دھلواؤں آپ کا، پھر یہ سوپ بھی پینا ہے۔ ایمان کو بیڈ پر بٹھا کر اسے سہارے سے اٹھاتے ہوئے وہیں منہ دھلوایا۔ چہرہ اچھی طرح سے خشک کرنے کے بعد چمچے سے سوپ پلانے لگی۔ جب سائڈ ٹیبل پر بڑے دھیان شاہ کے موبائل پر بیل بجی، انشال نے نمبر دیکھا۔ فون آغا جان کا تھا۔ آغا جان کا فون ہے، اس نے بتایا۔ ٹھیک ہے، تم یس کرو اور ان کو کچھ بھی مت بتانا، ایسے ہی پریشان ہوں گے۔ دھیان نے کچھ بھی بتانے سے منع کیا۔ السلام علیکم آغا جان۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو بیٹا؟ اور دھیان کیسا ہے؟ آغا جان نے اکٹھے دونوں کی خیریت پوچھی۔ نہ جانے کیوں دل رک رہا تھا، کچھ ہوا ضرور ہے۔ ٹھیک ہوں آغا جان، اور دھیان بھی ٹھیک ہے، انشال نے جواب دیا۔ دھیان ٹھیک ہے نا انشال؟ پتہ نہیں کیوں تسلی نہیں ہو رہی تھی، اسی لیے پھر پوچھا۔ ٹھیک ہے آغا جان، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ان کے لہجے میں واضح پریشانی تھی جو انشال نے محسوس کی۔ پتہ نہیں کیوں وہ دوسری بار دھیان کا پوچھ رہے تھے، کہیں انہیں پتہ تو نہیں چل گیا۔ اس کا دل دھڑکا۔ اچھا ٹھیک ہے، کہاں ہے وہ؟ بات کرواؤ میری اس سے۔ وہ ہر صورت تسلی چاہ رہے تھے۔ دھیان کے اشارے پر اس نے فون اس کے کان سے لگا دیا۔ جی آغا جان، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آغا جان، کچھ نہیں ہوا مجھے۔ دھیان شاہ کی بھرپور آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی تو کچھ تسلی ہوئی انہیں۔ وہ بیٹا، تمہاری ماں نے کوئی الٹا سیدھا خواب دیکھ لیا کہ تم سخت زخمی ہو، کافی چوٹیں آئی ہیں تمہیں۔ بس اس وقت اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی پریشان کر دیا، اسی لیے تمہاری خیریت پوچھ رہا ہوں۔ آغا جان نے بتایا تو وہ شوق میں آ گیا۔ مائیں کیسے جان لیتی ہیں سب؟ وہ بے طرح حیران ہوا۔ کچھ بھی نہیں ہوا آغا جان، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ اپنی سنائیں، سب خیریت ہے نا؟ اس نے بات ہی بدل دی، اور کہ وہ کچھ اور ہی نہ پوچھ لیں۔ پورے 1 ہفتے کے بعد آج اس کی دونوں ٹانگوں اور بائیں بازو کا پلسٹر کھلا تو وہ خوش تھا کہ بغیر سہارے وہ چل پھر سکے گا، کیونکہ انشال کے سہارے کے بغیر نہ وہ اٹھ سکتا تھا نہ ہی بیٹھ سکتا تھا، یہاں تک کہ واش روم تک جانا دوبھر ہو جاتا تھا۔ پھر اس کے لیٹے لیٹے بھی وہ کافی اکتا گیا تھا۔ عجیب بوریت اور اکتاہٹ سوار تھی ان دنوں۔ دائیں بازو پر چونکہ کافی چوٹیں آئی تھیں، اس لیے وہ زخم مندمل ہونے میں ابھی کافی ٹائم تھا۔ دھیان پلسٹر اتر گیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دھمالے ڈالنا شروع کر دیں۔ انشال نے اسے پورے گھر میں خوشی سے گھومتے دیکھ کر ڈانٹا۔ آج تو واقعی میرا دھمالے ڈالنے کو جی چاہ رہا ہے۔ پورے 1 ہفتے جس طرح اذیت میں گزارے ہیں وہ میں ہی جانتا ہوں۔ میری وجہ سے تمہیں بھی تکلیف اٹھانا پڑی۔ وہ واقعی بے حد خوش تھا۔ آپ نے بھی تو میرے زخموں پر مرہم رکھا تھا دھیان، اب میرا اتنا بھی حق نہیں آپ پر۔ وہ ناراضی سے پلٹنے لگی جب دھیان شاہ نے بازو سے پکڑ کر اسے خود سے قریب کر لیا۔ اس پورے کے پورے دھیان شاہ پر تمہارا حق ہے، سمجھی؟ اور یہ حق دھیان شاہ تمہیں سونپ چکا ہے۔ آئندہ ایسی بات نہیں کرنا۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شوخی سے جھکا تو وہ فوراً پیچھے ہٹی۔
आप भी आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। जो मैं कहूँगी सिर्फ़ वही करेंगे। आराम से बेड पर लिहाफ़ में जाइए और मुझे काम करने दें। अभी इतना कुछ बनाना है मुझे आपके लिए और आपकी इस लाडली के लिए। इंशाल उसे बेड पर बिठाते हुए बोली। बेड ग्राउंड से टेक लगाने के बाद ध्यान ने कंबल खुद पर फैलाया। ईमान क्या कर रही है? ध्यान ने उसे जाते देखा तो पूछा। खेल रही है लाउंज में। उसने उसे बताया। ऐसा करो, यहीं ले आओ उसे। वो बोला तो उसने गुस्से से उसे घूरा। ध्यान, तंग करेगी वो आपको। नहीं तंग करती, तुम बस ले आओ। तंग किया तो मुझे मत कहिएगा। ईमान को उसकी गोद में बिठाते हुए और बॉन्ड किया और कंबल फिर से दोनों के गिर्द लपेट दिया। ध्यान के साथ साथ ईमान भी अब कंबल में आ चुकी थी। उसने अपना बायां बाजू हाथ से उसके गिर्द फैलाते हुए प्यार किया। ध्यान की गोद में आते ही वो खिलखिलाने लगी। आधा घंटा भी ना गुजरा जब उसे अपनी शर्ट पर गीलापन महसूस हुआ। पहले वो कुछ ना समझ पाया। जब समझ आई तो गुस्से से ईमान को घूरा। गंदा बच्चा, ये क्या किया है? फिर इंशाल को पुकारने लगा। पहली आवाज पर वो कमरे में दाखिल हुई, लेकिन अंदर की सूरत-हाल देखकर बेसाख्ता हंसी छूट गई। हंसने का मौका नहीं है, प्लीज मेरे हाल पर रहम करो। वो बेचारगी से बोला, क्योंकि ईमान उसकी गोद में मछली जा रही थी। मना किया था ना आपको, तंग करेगी। बात नहीं मानी ना मेरी। मजा तो ले लिया होगा ईमान को गोद में बिठाने का। ईमान को उसकी गोद से उठाते हुए नीचे कारपेट पर लिटाया और उसके पास ही बेड पर बैठते हुए बुरी तरह से लताड़ा। माफ कर दो मेरी अच्छी बीवी, आइंदा तुम्हारी किसी बात से इनकार नहीं करूंगा, लेकिन अभी मुझे इससे निजात दिलाओ। उसने शर्ट की जानिब इशारा किया जो बुरी तरह गीली हो चुकी थी और ध्यान के लिए कोफ्त का बायस भी। दिल तो यही चाह रहा है कि ऐसे ही छोड़ दूं आपको। शर्ट के बटन आहिस्ता आहिस्ता खोलते हुए मसनूई गुस्से से बोली। ऐसे ही छोड़ दोगी तो जाओगी कहाँ? मुझे एक बार ठीक हो लेने दो, फिर देखना गिन गिन के बदले लूंगा दोनों से। ध्यान ने हाथ के इशारे से उसे वार्न किया तो वो मुस्कुरा दी। फिलहाल आप मेरी कस्टडी में हैं, इसलिए चुपचाप खामोशी से बैठे रहें। उफ मेरे खुदा, ये भी गीली हो गई। ध्यान शाह का वजूद शर्ट की कैसे आजाद करवाते हुए नजर बनियान पर पड़ी तो वो भी गीली हो चुकी थी। उसे भी एहतियात से उतारा। जब बिल्कुल अचानक उसका गर्म हाथ ध्यान शाह के ठंडे ठाठ जिस्म से टकरा गया। लम्हों में हलचल मची थी, धड़कनों में भी। इंशाल ने फौरन हाथ खींचा, लेकिन ध्यान शाह पहले ही अपना यक हाथ उसके हाथ पर रख चुका था। उसने बेयकीनी से उसे देखा। मोहब्बत पाश नजरें सनसनाहट पैदा कर रही थीं। वजूद में, दिल की धड़कनों में अजीब सा इर्ताश पैदा हो गया। उसने घबराकर फिर मुज़ाहमत की, लेकिन गिरफ्त मजबूत थी और ध्यान ने मौका ज़ाया किए बगैर हाथ खींचते हुए खुद पर गिरा लिया। वो सीधी उसके चौड़े सीने से लगी, अपना बाजू उसके गिर्द फैलाए हुए भरपूर हिसार कायम किया और उस पर झुकता गया। इतना दूर दूर रहोगी तो कैसे चलेगा सब? उसके चेहरे पर प्यार की मोहर जब्त करते हुए गंभीर लहजे में वो बोला। तो इंशाल ने उसके सीने पर धरे अपने दोनों हाथों का जोर डालते हुए उसे पीछे धकेला और अपनी बेतरतीब सांसों को संभालती उठ खड़ी हुई। अब सजा ये है आपकी कि आपको शर्ट नहीं मिलेगी, रहें ऐसे ही। वो उसे बुरी तरह से घूरते हुए बाहर निकल गई और वो वहीं सर थाम कर बैठ गया। क्या बनेगा ध्यानशाह तुम्हारा? मुसलसल एक हफ्ते से उसे अजीबो-गरीब ख्वाब आ रहे थे। कभी मम्मा को बेतरह रोते हुए देखती, कभी बेहद परेशान। बार-बार वो उसे ही पुकार रही होती। अब तो मुसलसल 3 दिनों से वो उन्हें सख्त बीमार देख रही थी। तब भी उनके लबों से उसी का नाम निकल रहा होता। कभी-कभी तो वो नींद में उठकर बैठ जाती। लंबे-लंबे सांस भरने लगी। ध्यान शाह भी उसकी बदलती कैफियत नोट कर रहा था। कई बार पूछा भी, लेकिन वो टाल गई। जानती थी शाह हाउस वालों के लिए ध्यान शाह का गुस्सा, इसीलिए डरती थी। लेकिन उस दिन आगा जान के फोन ने उसके ख्वाबों की तस्दीक कर दी। क्या कह रहे हैं आगा जी? क्या हुआ है ममा को? आगा जान ने उसे सामिया की खराबी तबीयत का बताया तो वो रो दी। पास बैठा ध्यानशाह चौंका। इंशाल बेटा, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक हो जाएगा सब। तुम परेशान ना हो। आगा जान उसे बताकर पछताए। तसल्ली भी दी, लेकिन वो रोए जा रही थी। ध्यान ने फोन हाथ से खींचकर बंद कर दिया। तुमसे मैंने कहा था, शाह हाउस वालों के लिए तुम एक आंसू नहीं बहाओगी। वो धाड़ा। ध्यान वो, मम्मा, भूल जाओ सबको। शाह हाउस से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, समझ आई? लेकिन वो कैसे भूल जाती? मानती थी
کہ دیان شاہ کی محبت نے اسے بھولنے پر مجبور کر دیا، لیکن شاہ ہاؤس والوں کو دل سے بھلا نہیں پائی تھی۔ آج آغا جان کے فون پر وہ پھر سے تڑپ اٹھی جب انہوں نے سامیہ کی بیماری کا تذکرہ کیا کہ ان کی یاد میں وہ اندر ہی اندر تڑپ رہے، تو وہ خود پر سے اختیار کھو بیٹھی۔ شاہ ہاؤس والوں سے ملنے کی خواہش شدت اختیار کر گئی، لیکن دیان شاہ کی بے حسی سے اندر ہی اندر ہار گئی۔ وہ اس سے شکوہ بھی نہیں کر سکتی تھی کہ اس کی محبت کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی۔ اس نے لب سی لیے لیکن اندر ہی اندر مرنے لگی۔ سامیہ کی طبیعت کافی دنوں سے سخت خراب تھی۔ بیٹی کی جدائی میں وہ اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی، گھٹ گھٹ کر مر رہی تھی، لیکن زبان پر لگا کفل نہ توڑا۔ انہوں نے احسان شاہ، فائقہ، تسکین، غزل حاذق اور منا اور رمنا سبھی اس وقت کمرے میں ان کی تیمارداری کو موجود تھے۔ حسان بھائی کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر؟ کوئی پریشانی والی بات تو نہیں؟ حسان شاہ کے کمرے میں داخل ہوتے ہی تسکین نے تشویش بھرے انداز میں پوچھا۔ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں ٹینشن ہے، کچھ عرصے کسی پرسکون جگہ لے جایا جائے تو بہتر ہے، ورنہ طبیعت زیادہ خراب ہو سکتی ہے۔ حسان شاہ نے بتایا تو آغا جان اور غزل ایک دوسرے کو دیکھ کر ہولے سے مسکرائے۔ کیا خیال ہے پھر چلے نا کسی پرفضا مقام پر؟ سامیہ چاچی کی طبیعت بھی بہل جائے گی اور آؤٹنگ بھی ہو جائے گی۔ غزل نے سب کے مرجھائے چہروں پر باری باری نظر ڈالتے ہوئے خوش دلی سے پوچھا۔ یہاں جان کے لالے پڑے ہیں اور تمہیں آؤٹنگ کی سوچ رہی ہے؟ فائقہ بیگم نے اسے بری طرح ڈانٹ کر آگے ہی ان تینوں کی کوئی خیر خبر نہیں تھی، جس کی وجہ سے سامیہ اس حال کو پہنچی اور اسے سیر سپاٹوں کی پڑی تھی۔ ماما، ڈاکٹر سے خود کہا ہے سامیہ چاچی کے لیے چینج بے حد ضروری ہے، بلکہ میرے خیال سے ہم سب کے لیے بے حد ضروری ہے۔ کیوں آغا جان؟ ان کی ڈانٹ کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے آغا جان سے پوچھا۔ بالکل، اور میرے خیال سے سوات کے علاوہ کوئی اور بہترین جگہ نہیں آؤٹنگ کے لیے۔ اتنے پرفضا مقام پر جا کر سبھی فریش ہو جائیں گے اور سامیہ کی طبیعت بھی بہل جائے گی۔ مزید وہ انہیں کچھ کہنا نہیں جانتے۔ ویسے بھی یہ صبح کے بھولے شام کو گھر میں لوٹے تھے۔ دھیان، انشال اور ایمان سے دوری اب انہیں بھی برداشت نہیں تھی۔ ویسے بھی بہت دورہ لیا تھا۔ ویسے بھی بہت دور رہ لیا تھا سب نے، احساس تو ہو گیا تھا انہیں، اس لیے وہ سب کو اور تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ نہیں بھائی صاحب، میں ٹھیک ہوں یہاں، کیا کروں گی سوات جا کر؟ سامیہ بیڈ پر لیٹی نقاہت سے بولی۔ ان کی پریشانی تو ان کے بچے تھے، وہی پاس نہیں تو پھر یہاں رہیں یا کہیں اور، کیا فرق پڑتا؟ میں کچھ نہیں سنوں گا۔ حاذق بیٹا، تم سب کی ٹکٹیں کنفرم کراؤ، ہم کل ہی سوات جائیں گے۔ آغا جان اپنے داماد کو حکم دیتے ہوئے باہر نکل گئے۔ انشال اپنی ہی سوچوں میں مگن دھیان کی شرٹ استری کرنے میں مصروف تھی جب اس نے پکارا۔ جی؟ اس نے وہیں سے گردن گھمائی۔ دھیان کی حالت زار دیکھ کر ہنسی چھوٹتے چھوٹتے رہ گئی۔ بلیک پینٹ پر گرے ہائی نیک کے ساتھ دونوں بازو بغلوں میں دبائے، ساتھ ہی ہتھیلیاں رگڑ کر پھر مٹھیاں گرم کرتے ہوئے گویا سردی کی شدت کو کم کرنے کی اپنی سی کوشش کی جا رہی تھی۔ دانت الگ سردی سے بج رہے تھے۔ قریب پڑا لحاف اپنی اس قدر تذلیل اور ناقدری پر اٹھ اٹھ آٹھ آٹھ آنسو بہا رہا تھا۔ جسے اوڑھنا تھا وہ دور کی بات، چھونے تک کی زحمت گوارا نہیں کی تھی دیان نے۔ یار جلدی کرو، مر رہا ہوں میں سردی سے۔ انشال کے گرد لپٹی کامدار براؤن شال میں دونوں ہاتھ سردی سے محفوظ کرتے ہوئے وہ انتہائی بے چارگی سے بولا۔ بس 5 منٹ، آپ لحاف لے لینا، ایسے سردی تھوڑی کم ہوگی۔ شرٹ پر مسلسل تیزی سے استری پھیرتے ہوئے دھیان کو غصے سے گھورا جو بدستور پہلی پوزیشن میں تھا۔ تم ایسا کرو، یہ سب چھوڑو اور فاتحہ پڑھ لو میری، کیونکہ جس طرح سے تم استری کر رہی ہو نا، اس میں میرا مرنا یقینی ہے۔ سوئچ بورڈ پر نظر ڈال لیجئے، آف ہے۔ دیان نے طنزیہ انداز میں اسے غلطی کا احساس دلایا تو اپنی بے وقوفی اور کم عقلی پر اسے بے تحاشا غصہ آیا۔ مسلسل 1 گھنٹے سے سوچوں کے گرداب میں گھری بے دھیانی میں سوئچ آن کیے بغیر شرٹ پریس کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ایک بار بھی خیال ذہن سے نہیں گزرا کہ 1 گھنٹے میں ایک کیا
वो ऐसी कई शर्ट्स प्रेस कर सकती थी, फिर इसे करने में इतनी देर क्यों? आई एम सॉरी, ध्यान ही नहीं रहा, मैं बस 2 मिनट में कर देती हूँ। उसने जल्दी जल्दी प्लग बोर्ड में लगाया और एक बार फिर इस्त्री करने लगी। ध्यान आयरन स्टैंड से टेक लगाए, उसकी बेसाख्तगी पर धीरे से मुस्कुराया। वैसे एक बात तो बताओ, तुम्हारा ध्यान था किधर, जो इस कदर फूहड़पन का सबूत दिया है? कहीं ध्यान में तो ध्यान नहीं था? उसकी आंखों में झांकता वो शरारत से बोला। मगर उस पल, इन शाल के पल भर में बदलते तासरात ने जिस तरह उसके अंदरूनी कर्ब को आश्कार किया, ध्यान शाह से कुछ भी पोशीदा ना रह सका। चेहरे पर फैली आजर्दगी, आंखों की वहशत, अंदरूनी इस्तराब, उसने तो शायद उसकी बात भी पूरी तरह से ना सुनी थी। सपाट चेहरे के साथ पलक निकाला और शर्ट उसकी जानिब बढ़ा दी। ध्यान ने शर्ट थामते हुए एक दुख भरी निगाह उस पर डाली, जो नाहक अपने साथ साथ उसकी जान पर भी जुल्म कर रही थी। खुद तो तकलीफ में थी ही, साथ में उसकी परेशानी और इस्तराफ में इजाफा किए जा रही थी। आगा जान के फोन के बाद जिस तरह वो अजियत में दिन काट रही थी, ध्यान बेखबर नहीं था। सामिया चाची की खराबी तबीयत का सुनकर वो खुद भी बेहद परेशान था, लेकिन इंशाल जिस तरह अंदर ही अंदर घुटकर अपना अंदरूनी इस्तराब और वहशत बढ़ा रही थी, वो ध्यान शाह की बर्दाश्त से बाहर था। वो तो शायद अभी खुद को जिम्मेदार ठहरा रही थी। जो गुनाह उससे सरजद हुआ ही नहीं, उसकी सजा झेले जा रही थी। जब उसका दिल बिल्कुल साफ था, उसने उसे हर इल्जाम से बरी जिम्मे कर दिया था। तमाम गलतफहमियां, शकूक शुबात जहन से निकाल बाहर फेंके थे। उसकी सारी सजाएं माफ करके उसे मान बख्शा था। तो फिर वो क्यों सब कुछ भुला नहीं पा रही थी? क्यों उन सब की याद में अंदर ही अंदर घुट रही थी? जो उसकी परवाह तो खैर क्या करते, उसकी शक्ल तक देखने के रवादाद नहीं थे। कैसे पल भर में उसे एतबार की सीढ़ी से नीचे गिरा दिया, बरसों का साथ एक सेकंड में तोड़ दिया। लम्हा भी ना लगा उन्हें अजनबी बनने में। जब उन्हें परवाह नहीं तो वो क्यों उनके लिए अपनी जान खत्म कर रही थी? ध्यान का गुस्सा अब सवा नेजे पर पहुंचने लगा। एक हाथ में शर्ट थामते हुए मुड़ती इंशाल का हाथ तेजी से अपनी जानिब खींचा। कुछ पल उन आंखों को देखता रहा जो आंसू छलकाने को बेताब थीं। इंशाल, क्यों जुल्म कर रही हो खुद पर? क्यों दे रही हो तकलीफ खुद को? उनके लिए जिन्हें तुम्हारी इतनी सी भी परवाह नहीं। मैंने तुम्हें पहले दिन ही कहा था, तुम्हारी आंख से एक आंसू भी निकला ना तो अच्छा नहीं होगा। तुम भूल क्यों नहीं जाती सब? कैसे भूल जाऊं सबको? नहीं भूल सकती। गुजरे पल का एक एक लम्हा, एक एक याद नाक की तरह मुझे अंदर ही अंदर डस रहे हैं, मुझे गहन जदा कर रहे हैं। मेरे वजूद का एक एक हिस्सा उनकी याद में तड़प रहा है। मैं कैसे भूलूं ध्यान? इन 20 सालों की रफाकत को, ममा की मोहब्बत और प्यार भरी डांटों को, पापा के लाड को, ताई जान की मोहब्बत और आगा जान की शफकत को। कैसे भूलूं ध्यान, मैं कैसे भूल जाऊं? मेरी वजह से आज ममा इस हाल को पहुंच गई हैं। कैसी बदनसीब हूं ना मैं, किसी को कोई खुशी भी ना दे सकी। आप कहते हैं मैं भूल जाऊं, सब कैसे भूल जाऊं ध्यान, कैसे भूल जाऊं? वो उसके बाजुओं में झूल गई। लाहौर के वसीओ अरीज पैलेस शाह हाउस में एहसान शाह अपनी बीवी फाइका बेगम और 2 बच्चों गजल और ध्यान शाह के साथ, पलाई मंजिल पर, और हस्सान शाह बीवी सामिया और बेटी मिनाल के साथ शाह हाउस की जीरी मंजिल पर रहते थे। एहसान शाह और हस्सान शाह की एक बहन तस्कीन अपने शौहर रजा अहमद और 2 बच्चों हाजिक और रमना के साथ डिफेंस के अहमदिया हाउस में रिहाइश पजीर थी। एहसान शाह और हस्सान शाह का मुश्तरका कारोबार था, जिन्हें दोनों भाई बखूबी एहसन चला रहे थे। शाह हाउस में गजल बच्चों में सबसे बड़ी थी, जिसे सब गजल आपी कहते थे। ध्यान शाह और मनाल तकरीबन हम उम्र थे, दोनों में 1 साल का फर्क था। इन्हीं दिनों जब गजल 17, ध्यान 10 और मिनाल 9 साल की थी, शाह हाउस में एक नई हस्ती, नए वजूद का इजाफा हुआ। बकौल ध्यान शाह, उसे वो दिन आज भी अच्छी तरह से याद था, जब वो सुबह सोकर उठा तो शाह हाउस में खिलाफ तवक्को हर तरफ खामोशी और सकूत छाया था। पूरे घर की तलाशी के बाद वो किचन में दाखिल हुआ तो रजिया को सिंक में बर्तन धोते देखकर सुख का सांस खारिज किया। चलो, कोई तो था घर में। रजिया ने उसे किचन में दाखिल होते देखकर
برتن वहीं छोड़े और उसकी तरफ आई। "ध्यान बेटा, उठ गए? आप बैठो, मैं नाश्ता लाती हूँ।" उसे नाश्ते की टेबल पर बैठने का कहकर वो खुद नाश्ता बनाने लगी। ना जाने क्यों उसके चेहरे पर अजीब मुस्कुराहट थी, जिसे वो समझ नहीं पाया। "रज़िया," ध्यान ने पुकारा। "आप यही पूछना चाह रहे हैं ना, छोटे शाहजी?" वो अक्सर उसे इसी नाम से पुकारती। "सब लोग कहाँ हैं और घर में इतनी खामोशी क्यों है? मैं आपको बताती हूँ, लेकिन पहले आप नाश्ता करें।" उसके बाद जैम लगी डबरोटी उसकी तरफ बढ़ाते हुए वो मायने खेज मुस्कुराहट होंठों पर सजाते हुए बोली। तो मजबूरन उसे पहले नाश्ता करना पड़ा। इससे पहले कि उसके चेहरे पर फैली दबी दबी मुस्कुराहट उसे किसी बड़ी खबर का पेश खैमा लगी। वो खबर यकीनन खुशी की थी। वो जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म करके फिर अपने मकसद की जानिब आया। "चलो रजिया, अब बताओ। देखो मैंने सारा नाश्ता खत्म कर लिया है।" उसने यकीन दिहानी के लिए टेबल की जानिब इशारा करते हुए बताया। पहले तो वो खूब खिलखिला कर हंसी, फिर उसके बिल्कुल सामने वाली चेयर पर बैठते हुए बोली, "आपके लिए खुशी की खबर है छोटे शाहजी। मिनाल बीबी की बहन हुई है आज सुबह। सब अस्पताल उसे ही देखने गए हैं। थोड़ी देर पहले आगा जान का फोन आया था। 2-4 घंटों तक बेबी समेत घर पहुंच जाएंगे।" वो अपनी ही रो में बोले जा रही थी और उस वक्त ध्यान शाह का जी चाहा खुशी से भंगड़ा डाले। मिनाल की बहन यानी ध्यान शाह की छोटी सी नन्ही मुन्नी सी कजन अचानक मिलने वाली इस गैर मुतवक्के खुशी की खबर से उसे चारों जानिब अजीब सी सरशारी ने आन घेरा। गजल आपी उससे पूरे 7 साल बड़ी थी और अपने बड़े होने का भरपूर फायदा उठाती। ये करो, वो ना करो, ये खाओ, वो ना खाओ, टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, काम के वक़्त काम और खेल के वक़्त खेल। उनके साथ तो दोस्ती का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता था। रही मिनाल तो वो उससे 1 साल ही छोटी थी और इस फ़र्क को दोनों ही किसी खाते में नहीं रखते थे। जितनी दोस्ती थी, उससे कहीं ज़्यादा झगड़ा। हर बात पर बहस, हर चीज़ पर लड़ाई, हर चीज़ में मुकाबलेबाज़ी रहती। उनकी रोब डालना तो दूर की बात, वो तो डाँटने तक की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। इसलिए अपनी उस नन्ही कज़न के आने पर बेइंतहा खुश था और खुश क्यों ना होता। आखिर को साद हमज़ा की अकड़ और गुरूर भी तो पाश-पाश करना था, जो हर वक़्त क्लास में अपनी बहन दोनिया की शो मारता फिरता, जो सिर्फ़ 3 माह की थी। पूरी क्लास को लिए ब्रेक टाइम में वो होता और उसकी दोनिया कोई भी नई बात जो दुनिया से मुताल्लिक होती। बड़ी-बड़ी आँखों वाली सुर्ख़ और सफ़ेद बच्ची थी, अक्सर औक़ात उसे देखकर ध्यान के दिल में भी शदीद ख़्वाहिश अंगड़ाई लेती कि काश शाह हाउस में भी कोई ऐसी ही गोल-मटोल प्यारी-सी खूबसूरत आँखों वाली छोटी-सी बेबी होती, ताकि साद हमज़ा की तरह उसके पास भी अपने दोस्तों को बताने को ऐसा कुछ हो सकता। शायद खुदा ने उसकी सुन ली, इसीलिए जब इतनी खुशी की खबर कानों में पड़ी तो वो खुद को हवाओं में उड़ता महसूस करने लगा। इससे पहले कि बेयकीनी की कैफियत में घिरा हुआ सोचों का तसलसल मज़ीद बरकरार रखता, गाड़ी का हॉर्न उसे हकीकत की दुनिया में ले आया। किचन से लाउंज और फिर राहदारी तक का सफ़र धड़कते दिल और फूलती सांसों समेत तय हुआ, जबकि शौक़ दीदार बढ़ता जा रहा था। फ़ाइक़ा बेगम ने आहिस्तगी से उसे सामिया के पहलू में लिटाया। जब ध्यानशाह ने पहली बार उसे देखा, लाइट और डार्क ब्राउन कंबल में उसका नन्हा-मुन्ना सा वजूद लिपटा था। आधी खुली, बंद आँखों के साथ कसमसाई हुई, शायद अभी नींद की कैफियत में थी। आगा जान, मम्मा हसन, चचा मिनाल, गज़ल आपी सभी बेहद खुश थे। बारी-बारी वो सबकी गोद में चढ़ी, उनसे प्यार वसूल कर रही थी। ध्यान का भी जी चाहा उसे उठाकर प्यार करे, जिस तरह बाकी सब कर रहे थे। लेकिन कोई भी उसे ऐसा करने की इजाज़त नहीं दे रहा था, क्योंकि उस वक़्त वो सिर्फ़ चंद घंटों की थी और सबको यही खौफ़ था कि कहीं वो उसे गिरा ना दे। उस वक़्त उसने अपनी ख़्वाहिश को दबा लिया, बहरहाल वो बहुत खुश था। उसके मुकाबले में तो साद हमज़ा की दुनिया कुछ भी नहीं थी। फिर जिस वक़्त ध्यान शाह उसे साद हमज़ा को दिखाने को लाया तो उसके चेहरे का रंग जिस तरह बदला, उसने सैरो खून बढ़ा दिया उसका। अब ध्यान शाह की बारी थी। क्लास का हर दूसरा बच्चा उससे रोज़ इस शाल के बारे में कुछ न कुछ पूछ रहा होता और वो साद हमज़ा की मौजूदगी में उसके दिन भर के रूटीन और शरारतें मज़े ले लेकर सुनाता। वो थी भी इतनी क्यूट और शरारती कि शाह हाउस की दुनिया गोया अब उसी के दम से कायम थी। ध्यान शाह और मिनाल दोनों की खुशियों का मरकज़ भी अब यही थी। गोल-मटोल सी नन्ही सी इंशाल थी, जो उन्हें बेहद अज़ीज़ थी।
इंशाल की छोटी सी छोटी ख्वाहिश, छोटे से छोटा काम वो दोनों बिला चूं चरा करते, बल्कि इंशाल की वजह से तो हर वक्त सर्द जंग छिड़ी रहती। दोनों के बीच ध्यान शाह, मिनाल और इंशाल हर जगह तकरीबन साथ-साथ होते। पढ़ना इकट्ठे, खेलने में साथ-साथ, खाने के वक़्त भी मिनाल और ध्यान में झगड़े के पेश नज़र, इंशाल बीच में और वो दोनों साइड में होते, ताकि बराबरी की फ़िज़ा कायम रहे। यहाँ तक कि दोस्तों के यहाँ भी तीनों इकट्ठे जाते। मिनाल को जब कभी फ्रेंड के यहाँ काम होता या फूफो के घर जाने को जी चाह रहा होता, इंशाल ज़रूर साथ जाने की ज़िद करती। छोड़ने की ड्यूटी हमेशा ध्यान शाह के सर होती और ड्यूटी हर सूरत निभाना भी यक कालिब तीन जान वाला फ़िक्रा। इन तीनों पर खूब बचता। इन तीनों पर खूब सजता। शुरू-शुरू में मिनाल, ध्यान और गज़ल आपी एक ही कमरा इस्तेमाल करते थे, लेकिन बाद में तीनों अलग-अलग कमरे में सोने लगे। इंशाल चूँकि अंधेरे में बहुत डरती थी, इसलिए उसने अलग सोने से मना किया और इस तरह मिनाल और इंशाल एक ही कमरा इस्तेमाल करने लगे। शायद ही ज़िंदगी में किसी ने उसे मिनाल के अलावा किसी और के साथ सोते देखा। बल्कि एक बार तो गज़ल आपी की शादी पर, जब मिनाल बारात के साथ तस्कीन फूफो के साथ अहमदिया हाउस गई, तो रात में उसकी गैर मौजूदगी में उसने रो रो कर आसमान सर पर उठा लिया। मजबूरन फ़ोन करके उसे वापस बुलाना पड़ा। सभी जानते थे कि मिनाल के साथ उसकी सोने की आदत कितनी पुख्ता हो चुकी है। आदत पुख्ता हो जाएं तो ये अपने होने का यकीन ज़रूर दिलाती हैं। उस वक्त जब वो 27 बरस का था, मिनाल 26 और इंशाल फ़कत 16 बरस की ओ लेवल कर रही थी, जब आगा जान ने एक दिन ध्यान को अपने कमरे में तलब किया। आपने बुलाया था आगा जान? एहसान शाह को मैगजीन की वर्क गुर्दानी करते देखकर उसने यकीन दिहानी चाही। उन्होंने सर उठाया, हौले से मुस्कुराए और उसे बैठने का कहकर खुद सीधे हो गए। बेटा, कितनी छुट्टियां बाकी हैं तुम्हारी? उन्होंने पूछा। 3 माह की आगा जान। ध्यान बेटा, अब चूंकि तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है और तुम अच्छी पोस्ट पर हो, इसलिए मेरी और तुम्हारी मम्मा की राय यह है कि इन छुट्टियों में तुम्हारी और मिनाल की शादी कर दी जाए। बहुत ठहरे-ठहरे संजीदा लहजे में उन्होंने अपना मुद्दा बयान किया। इतनी जल्दी आगा जान? वो फ़कत इतना ही बोल सका। पता नहीं क्यों मिनाल के साथ शादी का सुनकर उसे कोई ख़ास खुशी नहीं हुई थी। अंदर एक अजीब-सा सन्नाटा था, जिसे वो कोई नाम नहीं दे पाया। हालाँकि मिनाल हर लिहाज से एक बेहतरीन लड़की थी। बरसों का साथ था दोनों का। एक-दूसरे की आदत से अच्छी तरह से वाकिफ़ थे। दोस्ती, लड़ाई, यकीन, खुलूस, एतमाद सभी रिश्ते थे दोनों के बीच। फिर भी अंदर एक अनजाना सा सकूत था। क्यों? ये वो खुद भी नहीं जानता था। ध्यान शाह, पूरे 27 के हो गए हो। मेरे ख्याल से तो काफ़ी लेट हो गए हो। फिर मिनाल और तुम में इतना ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है। 1 साल ही छोटी है तुमसे और मेरे ख्याल से तुम दोनों के दरमियान अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग भी है। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, तुम उसे पसंद भी करते हो। इसलिए तुम्हें तो कोई ऐतराज़ नहीं होगा। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? बहुत मान से वो पूछ रहे थे। इनकार की गुंजाइश ही कहाँ रखी थी उन्होंने। ऐसा हो भी जाता, तब भी वो उनका मान कभी ना तोड़ता। इसलिए उनके फैसले के आगे सर झुका लिया। इस तरह मिनाल हस्सान शाह, मिनाल दयान शाह बनकर उसकी ज़िंदगी में आ गई। इन रिश्तों के बीच शक, गलतफहमियों और नफ़रत की दीवार शादी की पहली रात उस वक़्त खड़ी हुई, जब इंशाल हस्सान शाह ने उनकी ज़िंदगी में दस्तक दी। ध्यान शाह को कमरे में आए ज़्यादा वक़्त नहीं गुज़रा था। अभी अपने और मिनाल के दरमियान बनने वाले उस नए बंधन की शुरुआत के बारे में वो सोच ही रहा था, जब यकदम दरवाज़े पर दस्तक हुई। मिनाल और ध्यान दोनों ने बेक वक़्त एक-दूसरे की जानिब देखा। हैरानगी दोनों के चेहरे पर सवा थी। ये कौन आ गया? वो मीनाल की तरफ देखते हुए बोला, जो उसे ही देख रही थी। फिर आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला, तो अपने सामने खड़े इंसान को देखकर वो सचमुच को चकरा गया। इंशाल तुम? आलम हैरत में सिर्फ यही बोल सका, इससे पहले कि वो उसके यहाँ आने का मकसद दरियाफ्त करता। इंशाल उसे परे करती अंदर दाखिल हुई। मिनाल आपी, आप यहाँ क्यों आ गई हैं? आपको पता है ना कि मुझे आपके बगैर बिल्कुल नींद नहीं आती। प्लीज़, आप चलें अपने कमरे में। वो मिनाल का बाजू थामे, बिल्कुल बच्चों की तरह ज़िद करते हुए बोली। तो उसके यहाँ आने का मकसद जानकर मिनाल के साथ-साथ वो भी अपनी जगह ठिठक गया। ये सच था कि वो और मिनाल शुरू से एक ही कमरा और बेड इस्तेमाल करती आई थीं। लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि इंशाल आज के दिन
इस तरह का रिएक्ट करेगी। मिनाल तो बिल्कुल फटी-फटी आँखों से कभी इंशाल और कभी ध्यान शाह को देख रही थी। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि आज के दिन जब वो जबकि वो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रही थी, उसकी बहन इस तरह उसकी खुशियों का गला घोंटने चली आएगी। इंशाल गुड़िया, अब तो आप बड़े हो गए हो। अब तो आपको अकेले सोने की आदत डाल लेनी चाहिए। मिनाल ने दिल पर जबर करते हुए समझाना चाहा। मिनाल आपी, आपको पता है ना कि मुझे डर लगता है अकेले में, और आपके बगैर मुझे नींद भी नहीं आती है। अपनी आदत से मजबूर वो आंखें मलते हुए बोली। यूं लग रहा था जैसे वो गहरी नींद से जागी हो। अच्छा ठीक है, तुम कमरे में जाकर अच्छे बच्चों की तरह आंखें बंद करो, मैं अभी आती हूँ। उसने लाड से समझाते हुए आखिरी हरबा इस्तेमाल किया, ये जानते हुए भी कि वो जिद की कितनी पक्की है। इसलिए बगैर वो उसे लिए बगैर वो हरगिज नहीं जाएगी। फिर वही हुआ। नहीं आपी, आप जब तक मेरे साथ नहीं चलेंगी मैं नहीं जाऊंगी। प्लीज चले ना, मुझे नींद आ रही है। फिर इंशाल की जिद के आगे उसे हथियार डालना पड़े। ध्यान अलग इस सारी सूरत-हाल पर परेशान खड़ा था। 3 तो पहले हो चुके थे। अज़ानों से कुछ देर पहले वो सपाट चेहरे के साथ कमरे में लौटी। ध्यान उसी के इंतज़ार में सोफ़े की पुष्ट से टेक लगाए बैठा था। मिनाल के कमरे में दाखिल होते ही उसकी जानिब बढ़ा। प्लीज़ ध्यान, मैं इस वक़्त कोई बात नहीं करना चाह रही। मिनाल ने हाथ के इशारे से उसे वहीं रोक दिया। ध्यान ने एक नज़र उसके संजीदा अफसरदा चेहरे पर डाली, जो उसका अंदरूनी कर्ब आश्कार कर रहा था। जानता था उस दिन के अरमान लड़की अपनी आँखों में सजाए होती है। अरमान की यूँ किरचियाँ हों तो दिल कैसे टूटता है। अरमानों का खून कैसे होता है, आँखों में लो देते ख्वाहिशों के दिए एक-एक करके कैसे मद्धम पड़ जाते हैं। ध्यान शाह बाखूबी जानता था। देखो मिनाल, बच्ची है वो। फिर तुम जानती हो कि वो शुरू से तुम्हारे साथ सोने की आदी है। इसलिए अगर वो इस किस्म का रिएक्ट कर रही है तो प्लीज़ डिसहार्ट मत हो। आहिस्ता-आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं वो समझी या नहीं, लेकिन गलतफ़हमी और शक की पहली दीवार उसके दिल में खड़ी हो चुकी थी। फिर अक्सर व बेशतर यही होने लगा। इंशाल के पास से वो अपने कमरे में आती, तो उसका जी चाहता हमेशा की अब्दी नींद सो जाए। शाह हाउस का कोई भी फर्द इस तमाम सूरत-हाल से बिल्कुल अनजान था। मिनाल ने भी अपनी ज़ुबान पर कफ़ल लगा लिए। क्या बताती कि इंशाल हसन शाह, उसकी सगी बहन, उसे अंदर ही अंदर मार रही है। उसकी खुशियों भरी ज़िंदगी में आग लगा रही है। कदम-कदम पर उसके लिए दुखों का सामान बनती जा रही है। अपनी ज़िंदगी के इस सफ़र में ध्यान शाह के साथ वो तन्हा तो कभी नहीं थी। हर मोड़ और कदम-कदम पर इंशाल हसन शाह अब भी उनके बीच मौजूद थी। मम्मा, ध्यान भाई कब आएँगे? इंशाल ने कोई 10वीं बार दरवाजे पर बेचैनी से नज़र डालते, दौड़ाते के बाद पूछा। बिल आखिर साम्या से पूछ लिया। पास बैठी मिनाल ने अजीब से अंदाज में उसे देखा, जो अंदर ही अंदर ध्यान शाह के साथ कैफे का प्रोग्राम बनाए बैठी थी। सामिया डांटते हुए बोली, मामा आपको पता है, मैं ध्यान भाई के अलावा किसी के साथ नहीं जाती। इंशाल बोली तो मिनाल के दिल को कुछ हुआ। लाउंज का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होते ध्यान शाह तक भी उसके अल्फाज पहुंचे। मेरी बिल्ली ने याद किया और मैं हाजिर। उसके सर पर चपत लगाता वो खुशदिली से उसे साथ लगाते हुए बोला तो मिनाल की बर्दाश्त जवाब दे गई। सर्द सपाट चेहरे के साथ वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। अगला सारा दिन खामोशी में गुजरा। शाह हाउस के तकरीबन हर फर्द ने उसकी खामोशी नोट की। पूछा भी, लेकिन वो खराबी तबीयत का बहाना करके टाल गई। जिस कर्ब से वो गुजर रही थी, जिस तकलीफ के एहसास से उसकी जख्मी रूह दर्द आशना थी, उसका असर वो शाह हाउस की हस्ती बसती जिंदगियों पर डालकर उन्हें दुखों के अजियतों के समंदर में धकेलना नहीं चाहती थी। क्या करती वो? पर दुख तो किसी से शेयर भी नहीं कर सकती थी। जिनसे करती, वो तो उसके इतने प्यार, इतने मोहब्बत करने वाले थे। उनको दुख देने का वो सोच भी नहीं सकती थी। और जिसकी वजह से वो दुखों से दो चार थी, वो भी तो उसकी अपनी थी। फिर कैसे वो सबको दुख देने का सोचती? इसलिए उस आग में तन्हा ही जलती रही। वो छुट्टी का दिन था। नाश्ते से फरागत के बाद एहसान शाह और हस्सान शाह में बिजनेस मैटर्स पर बहस होने लगी। सामिया और फायका बेगम मुलाजमों के साथ मिलकर हफ्तावार सफाई का प्रोग्राम तरतीब दे रही थी।
ان شال کو بیٹھے بیٹھے نہ جانے کیا سوجھی، کرکٹ کا پروگرام بنا ڈالا۔ کچھ منال کا موڈ ٹھیک تھا، کچھ انشال کی ضد نے اسے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ انشال، منال اور دیان شاہ ہاؤس کے وسیع عریض لان میں کرکٹ سے بھرپور لطف اٹھا رہے تھے۔ دیان بھائی، صحیح کروائے نا بالنگ، منال آپی کو تو اتنی آہستہ کروائی تھی۔ دیان کو فل اسپیڈ سے بالنگ کرواتے دیکھ کر وہ غصے سے بولی۔ اس کی بات پر وہ دونوں مسکرائے۔ یہ لو، اب ٹھیک ہے؟ اس نے اپنے مخصوص انداز میں بال پھینکی جو وکٹوں سے پیچھے سیدھی دیوار کو لگی۔ دیان بھائی، وہ چیخی، اب اس سے آہستہ نہیں کروا سکتا۔ اس نے جان بوجھ کر تنگ کیا۔ دیان بھائی، اب آپ نے تیز کروائی نا تو پھر دیکھیے گا۔ انشال نے بلہ سیدھا کرتے ہوئے اسے وارن کیا۔ دیان نے ہاتھ میں پکڑی بال گرے پینٹ سے رگڑی، ایک نظر انشال پر ڈالی، پھر لان میں بنے مصنوعی ابشار کے پاس سے بھاگتے ہوئے بال تھرو کی۔ انشال جو اپنی ہی رو میں بھرپور اعتماد کے ساتھ بلہ پکڑے سلو بال کی توقع کر رہی تھی، دیان شاہ کی تیز بال نے اس کی ساری خود اعتمادی ہوا میں اڑا دی۔ بال سیدھی وکٹوں میں لگی۔ اس نے غصے سے بلہ وہیں پھینکا اور چیختی ہوئی دیان شاہ کے پیچھے بھاگی۔ بس یہی ایک لمحہ لگا۔ منال دیان شاہ کے اندر کی شکی انسان کو کروٹ لینے میں، سپاٹ چہرے کے ساتھ وہ دیان اور انشال کو لان میں آگے پیچھے بھاگتے دیکھ رہی تھی۔ دونوں کے کان پھاڑتے قہقہے اس کا اندرونی کرب بڑھانے لگے۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ میں کیوں اپنے اندر شک کے بیج پروان چڑھا رہی ہوں؟ یہ سب جو آنکھیں دیکھ رہی ہیں، محسوس کر رہی ہیں، نیا تو نہیں؟ پھر دل کیوں برداشت نہیں کر پا رہا سب؟ کیوں میں شک کی آگ میں جلتے جلتے اپنا آپ ختم کر رہی ہوں؟ کمرے کی کھلی کھڑکی سے ان دونوں کو لڑتے دیکھتے ہوئے بے بسی سے سوچا۔ 2 سال کا طویل عرصہ اسی شک، غلط فہمیوں اور نفرتوں کے بیچ گزر گیا۔ کبھی وہ پہلے والی منال بن جاتی، ہنستی کھیلتی، زندگی سے بھرپور، اور کبھی اس کا جی چاہتا شاہ ہاؤس سمیت سب کو آگ لگا دے اور خود بھی اس کا حصہ بن جائے۔ شاید اس طرح اس کے اندر کی آگ کچھ ٹھنڈی ہو۔ دیان شاہ سے تو اس سے کوئی شکایت نہ تھی۔ اس نے تو ہر موڑ پر، ہر قدم پر ساتھ نبھایا تھا۔ نہ جانے پھر کیوں وہ اپنے لیے نرم بستر چھوڑ کر کانٹوں کی سیج سجا رہی تھی۔ انہی دنوں انشال بری طرح چیخی اس کے انداز پر۔ یہی مشورہ میری طرف سے آپ کے لیے ہے میری گڑیا، کل کا انتظار کیجیے۔ دیان بھائی، مجھے گڑیا نہ کہا کریں، بڑی ہو گئی ہوں اب میں۔ دیان شاہ کے گڑیا کہنے پر وہ غصے سے بولتی تو پاس بیٹھی منال نے عجیب سے انداز میں اسے دیکھا۔ دل نہ جانے کیوں کوئی اور ہی مطلب آخذ کر رہا تھا۔ اچھا، دیان بھرپور مسکراہٹ ہونٹوں پر سجاتے ہوئے بولا، ویسے ماما، میں نے اور منال نے سوچا ہے بیٹی ہوئی تو دعا اور بیٹا ہوا تو وہاج نام رکھیں گے، کیسے ہیں؟ اس لیے مزید بتایا۔ دعا اور وہاج، وہ حیرت سے چیخ گئی، میں نے بھی تو یہی نام سوچے تھے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ خوشی سے مچلتی وہ بولی تو اسی ایک لمحے میں منال کی خوشی کا کافور ہو گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اسے بھی یہی نام پسند ہو جو دیان نے بتائے۔ اسے لگا انشال نے جان بوجھ کر اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ لیکن مجھے یہ نام پسند نہیں، اس کی آواز نے سب کو خاموش کروا دیا۔ کیوں منال، اتنے اچھے تو ہیں نام، پھر تمہاری اور دیان دونوں کی مرضی شامل ہے اس میں، بلکہ میرے خیال سے تو سبھی کو پسند ہے دونوں نام۔ فائقہ بولی، لیکن اب مجھے اچھے نہیں لگ رہے، مجھے ایمان پسند ہے، میں وہی رکھوں گی۔ وہ متانت سے بولتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ جوں جوں ڈیلیوری کے دن قریب آ رہے تھے وہ چڑچڑی ہونے لگی۔ ضدی پن، غصہ بھوت کی طرح سر پر سوار رہنے لگا۔ بات بے بات غصہ کرنے لگتی، بیٹھے بیٹھے رونے لگتی، خوامخواہ ہی ملازمین پر چلانے لگتی۔ انشال کا وجود اپنی زندگی میں برداشت کرتے کرتے وہ تھک چکی تھی۔ وہ فقط دیان شاہ کی رہنا چاہتی تھی، لیکن اس کے اندر شک کی اتنی دیواریں کھڑی ہو چکی تھیں جنہیں وہ گرانا چاہتی تھی، تب بھی گرا نہیں پائی۔ اس دن تو انتہا ہو گئی۔ وہ شام کی چائے پینے میں مصروف تھی۔ احسان شاہ، حسان شاہ، فائقہ اور سامیہ سبھی اس وقت لاؤنج میں چائے سے لطف اٹھا رہے تھے۔ دھیان نظر نہیں آ رہا منال؟ آغا جان نے پوچھا۔ شاور لے رہے ہیں آغا جان، میں دیکھتی ہوں، منال بتاتے ہوئے کمرے کی جانب بڑھی۔ اس نے کمرے کی ناف گھما کر جیسے ہی اندر داخل ہونا چاہا،
انشال کی آواز نے اس کے قدم وہیں جکڑ دیے۔ دماغ میں جھکڑ چلنے لگے، جسم کا سارا لہو نچڑ کر چہرے پر آن جنا ہوا۔ شک کا بیج جو اندر کنڈلی مارے بیٹھا تھا بے بنیاد نہیں تھا۔ دل جو سچ کی گردان کرتا رہتا تھا، اندر سے آتی آوازوں نے اس پر تصدیق کی مہر ضبط کر دی۔ پھر اس کی برداشت جواب دے گئی۔ اسے لگا اب بھی خاموش رہی تو اس کا دم گھٹ جائے گا۔ کیا کہہ رہی ہو منال، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لاؤنج میں بیٹھے چاروں نفوس منال شاہ کے انکشاف پر شوق میں آ گئے۔ سب سے پہلے سامیہ کی کیفیت ٹوٹی۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں مما، آپ کو یقین نہیں آتا تو خود چل کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ وہ روئے جا رہی تھی اور سب اوپر پہنچے تو اندر سے آتی آوازوں پر واقعی سکتے میں آ گئے۔ میں بہت محبت کرتی ہوں آپ سے، آپ کے بغیر تو اب ایک پل گزارا مشکل ہے میرے لیے۔ مجھے لگتا ہے یہ سانسیں تھم جائیں گی، اس وجود کی چلتی پھرتی حرکت رک جائے گی میری سانسوں کو تھمنے سے پہلے۔ اپنا لیں پلیز، مجھے اپنا لیں۔ کالج کے ڈرامہ فیسٹیول میں شامل ڈائلاگ بے حد جذباتی انداز میں دیان شاہ کے سامنے لہک لہک کر پڑھنے میں وہ مگن تھی۔ جب دھاڑ کے ساتھ دروازہ کھلا، دونوں فوراً سنبھلے۔ ان پانچوں کو سپاٹ چہروں کے ساتھ اندر داخل ہوتے دیکھ کر دونوں بے طرح حیران ہوئے، لیکن اگلا لمحہ اس سے زیادہ شاکنگ تھا جب سامیہ نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ شرم نہ آئی تجھے انشال، اپنی بہن کا گھر برباد کرتے ہوئے؟ ارے کون سی کمی رہ گئی تھی میری تربیت میں؟ مجھے پتا ہوتا تو ایسی نکلے گی تو پیدا ہوتے ہی تیرا گلا گھونٹ دیتی۔ میں مر کیوں نہ گئی تجھے جنم دیتے ہوئے؟ وہ اسے مارنے کے ساتھ ساتھ کوسے جا رہی تھیں۔ کیا ہو گیا ہے سامیہ چاچی آپ کو؟ دھیان انہیں علیحدہ کرتے ہوئے دھاڑا۔ اب بھی پوچھ رہے ہو دھیان کہ کیا ہوا ہے؟ یہ سب کی آنکھوں میں دھول جھونکتی رہی اور ہم انجان بنے رہے۔ فائقہ بیگم اس سے زیادہ دھاڑتی آواز میں بولی، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے جو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ وہ سمجھ تو گیا تھا ان کا مطلب۔ سب کچھ ان گناہگار کانوں سے سن چکے ہیں، ابھی بھی کہہ رہے ہو کہ غلط فہمی ہوئی ہے؟ یہ سب تو اس نے غلط فہمی دور کرنا چاہی، مگر اس سے پہلے ایک دل سوز آواز نے سب کو چونکا دیا۔ سیڑھیوں کے پاس مینال دیانشا خون میں لت پت اوندھے منہ پڑی تھی۔ آئی ایم سوری، ہم صرف بچی کو بچا سکے۔ ہاسپٹل کے در و دیوار ہل گئے اس انکشاف سے۔ پھر اس کی آزمائش شروع ہو گئی، نہ کردہ گناہوں کی آزمائشیں۔ کیا کیا درد نہیں سہا اس نے، اپنوں کی بے اعتباری کا درد، خود پر لگے بے سبب الزام کا درد، شاہ ہاؤس کے ناروا رویوں کا درد، منال کی موت کا درد، اور سب سے بڑھ کر دیان شاہ سے وابستگی کا درد۔ اپنے کون سے غم بھلاتی اور کن دکھوں کا ماتم کرتی؟ وہ تو مولک ہو کر رہ گئی زمین اور آسمان کے درمیان۔ قدموں سے زمین سرکی تھی تو چھت کون سا سلامت تھی، بس ہچکولے تھے، چاروں جانب لیے پھر رہے تھے۔ باہر مسلسل بیل بج رہی تھی اور اندر دیان شاہ اسے چپ کروانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا، جو ہوش میں آنے کے بعد روئے جا رہی تھی۔ وقفے وقفے سے بجتی بیل جو کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھی، اس نے اسے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ انشال کو اسی حال میں روتا چھوڑ کر وہ گیٹ کی جانب بڑھا۔ دروازہ کھولتے ہی جس ہستی پر نظر پڑی اسے دیکھ کر وہ سچ مچ کو چکرا گیا۔ آغا جان آپ؟ جی میں، اور میں ہی نہیں بلکہ… آغا جان بولتے ساتھ ہی سامنے سے ہٹے تو اپنے سامنے لگا شاہ ہاؤس کا مجموعہ دیکھ کر وہ سچ مچ بے ہوش ہونے کو تھا۔ دیان، ہم سے انجانے میں بھول ہو گئی، ہمیں معاف کر دو بیٹا۔ فائقہ بیگم نے روتے ہوئے معافی مانگی تو دیان نے آگے بڑھ کر سب کو گلے سے لگا لیا۔ اتنا کمزرز تو نہیں تھا کہ ان کے جڑے ہاتھوں کا پاس نہ رکھتا۔ پورے سال بعد انہیں اپنے سامنے دیکھ کر دل کو جو انجانی خوشی ہوئی وہ بیان سے باہر تھی۔ سب کو جلدی سے لیے وہ اندر آیا، اس پاگل کو بھی تو خوشخبری سنانا تھی۔ انشال، سامیہ نے پکارا۔ اس نے سر نہ اٹھایا، مونز اسی حالت میں رہی، مگر آواز پر غور کرتے ہی آنسوؤں کے ساتھ سر اوپر اٹھایا۔ آغا جان، حسان شاہ، سامیہ اور فائقہ بیگم غزل حاذق اور رمنا کو اپنے سامنے باہیں پھیلائے دیکھ کر بے یقینی سے دھیان کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے جذبات میں سر ہلاتے ہی وہ خوشی سے بھاگتی ان سب سے لپٹ گئی۔ غلط فہمیوں کے بادل چھٹ چکے تھے، اب مطلع بالکل صاف تھا۔
खुशियों ने उनकी ज़िंदगी में भरपूर दस्तक दी। वैसे मम्मा, कैसा लगा सरप्राइज़? लाउंज में उस वक़्त सभी बैठे गप्पे हाँक रहे थे, जब ग़ज़ल बोली, बहुत छुपे रुस्तम निकले तुम दोनों बाप-बेटी। पता है ध्यान, इन दोनों ने आखिरी वक़्त तक नहीं बताया। जब गाड़ी से उतरकर यहाँ पहुँचे तो इंकिशाफ़ किया। सामिया बोली तो सभी हँसने लगे। फिर शाम में सब उस गाँव की सैर को निकले। इंशाल तो उस वक़्त से हाथ ही नहीं आ रही थी और उसे रह रहकर उस पर गुस्सा आ रहा था, जो उन सब के आते ही बिल्कुल भूल गई थी उसे। ये बात है तो ठीक है। ध्यान शाह की मोहब्बत देखी है तुमने, गुस्सा नहीं। अब देखना क्या करता हूँ मैं। उसे दूर पगडंडियों में सबके बीच चहकते देखकर गुस्से से दाँत पीसे। फिर घर आने तक उसका मूड बिल्कुल ऑफ हो चुका था। इंशाल ने भी उसकी ये कैफ़ियत नोट की, मगर वजह वजह वो अच्छी तरह से जानती थी। वाक़ई उन सब के आते ही उसने बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया था उसे। अचानक मिलने वाली खुशी में वो उसे भूल ही गई थी। कोई बात नहीं, मना लूँगी। आखिर कर आखिर कब तक नाराज़ रहेंगे? उसने मुस्कुराते हुए खाने की टेबल पर बेदिली से खाना खाते ध्यान शाह को भरपूर नज़रों के हिसार में लेते हुए सोचा। लेकिन ये उसकी खाम-ख़याली निकली। रात 12 बजे के करीब वो कमरे में दाख़िल हुई तो ध्यान ईमान को सीने पर सुलाए, खुद भी गहरी नींद सो रहा था। उसने आगे बढ़कर बहुत आहिस्तगी से ईमान को उठाकर बेड पर लिटाया और खुद वहीं उसके सामने बेड पर ही बैठ गई। कुछ देर उसके निरोठे चेहरे को देखती रही, जिस पर सोते में भी नाराज़ी छलक रही थी। फिर ना जाने क्या हुआ, दोनों हाथ उसके चौड़े सीने से बांधते हुए अपनी नाजुक थोड़ी उन पर टिकाए हुए बेख्तियार उसे देखे गई। पता नहीं क्यों उसे यूं देखना अच्छा लग रहा था। आज वो बहुत खुश थी। बहुत कठिन मराहिल जो वो गुज़ार आई थी, उसके बाद दिल का सोना आंगन खुशियों से भर गया था। उसका जी चाहा आज की रात बस यूँ ही उसे देखते हुए बीत जाए। लेकिन फिर उसकी नींद के ख़्याल से वो उठने लगी। जब वो मज़बूत हाथों ने जब 2 मज़बूत हाथों ने उसके पीछे गिरफ्त मज़बूत करते हुए उसे मुकम्मल हिसार में लिया। भाग कर रही हो? ध्यान ने आँखें खोलते हुए उसे घूरा। आप जाग रहे थे? उसे बेतनहा हैरत हुई, क्योंकि उसे देखकर यही लग रहा था जैसे वो गहरी नींद में हो। जी बिल्कुल, जाग रहा था। तुम्हें ऐसे ही छोड़कर मैं सो सकता हूँ? ध्यान मुकम्मल नाराज़गी का इज़हार करते हुए इब्तदाइया लहजे में बोला, आई एम सॉरी। उसने कान पकड़े। सॉरी से काम नहीं चलेगा। फिर? फिर ये कि मुझे मनाओ। वो बदस्तूर नाराज़ था। कैसे मनाऊँ? सॉरी तो कह दिया। उसकी तो जान पर बन गई। जैसे मैं मनाता हूँ। उसकी आँखों में झाँकता मायने ख़ेज़ी से बोला तो इंशाल हया से सुर्ख़ हो गई। ध्यान प्लीज़। वो बेबस हुई। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। उसके गिर्द से अपना हिसार तोड़ता वो फिर से सोता बन गया, जिसका मतलब उसकी तरफ से मुकम्मल नाराज़ी थी। फिर इंशाल को उसे मनाना पड़ा कि ध्यान शाह की वजह से ज़िंदगी की खुशियाँ उसका नसीब बनी थीं। फिर उसे वो कैसे नाराज़ कर सकती थी? मुझको मंज़ूर नहीं कि तू रूठे मुझसे। दुःख तुझे मुझसे मिले ये नहीं फ़ितरत मेरी। इंशाल बोली तो उसने बहुत हैरत से उसे देखा। फिर मुस्कुराते हुए वापस अपनी पहली पोज़ीशन में आया और शोखी से उसकी आँखों में झाँकते हुए बोला, थैंक्स। वो बुरी तरह पज़ल हुई। ध्यान, बहुत बुरे हैं आप। इंशाल शर्माते हुए बोली, एहसान मानो मेरा, जल्दी मान गया। वरना तुमने जो मेरे साथ किया है ना, उस पर मेरा जी चाह रहा था 2-4 खींच कर लगाऊँ। लगा दें? सोच क्या रहे हैं? अब कि वो नाराज़ होकर उठने लगी, लेकिन उठ ना सकी। ध्यान की गिरफ्त मज़बूत थी। लगा दूँ? फिर नाराज़ नहीं होना। वो पुरशौक लहजे में कहता उस पर झुका। कितने ख़राब हैं आप ध्यान। उस पर मुक्कों की बारिश करती वो उठ खड़ी हुई। जैसा भी हूँ, अब सिर्फ़ तुम्हारा हूँ, बर्दाश्त करो। उसके अंदाज़ पर वो भरपूर कहका लगा बैठा। ईमान सो रही है ध्यान, आहिस्ता। उसने बावर करवाया तो वो संजीदा हुआ और फिर बोला, अच्छा बात सुनो। वो करीब हुआ तो इंशाल ने पास पड़े कुशन उठाकर दे मारे। उफ़ मेरे खुदा! तुम्हारे साथ गुज़ारा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसने कुशन सीने पर रखते हुए गहरी साँस भरी। जैसी भी हूँ अब आपकी ही हूँ, बर्दाश्त करें। वो उसी का जुमला उसको लौटाते हुए हँस दी, तो ध्यान शाह भी उसके अंदाज़ पर मुस्कुराए बगैर ना रह सका। खिड़की से बाहर दूर तलक आसमान पर फैली चाँद की छन-छन करती रोशनी ने दोनों की मुस्कुराहट में भरपूर साथ दिया। इंशाल ने आगे बढ़कर बहुत आहिस्तगी से अपना सर अपने हमसफ़र के कांधे पर रखा तो बदलियों में छुपा चाँद उस हसीन मिलन पर
مکمل دکھائی دینے لگا۔